Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, a very warm welcome everyone. Good morning, afternoon, evening. आप जहाँ पर भी हैं, hope you're doing well. Hope you are staying safe and staying healthy. आज का show, even though we wanted to continue with Ria and we might, थोड़ा उनके बारे में बात जरूर करेंगे रिया चक्रवर्ती के बारे में, but a lot of messages, a lot of WhatsApp messages and DMs उनके basis पे, and of course Twitter में भी मैं देख रहा था बहुत सारे लोग बात करना चाहते थे आज. They really want to talk a lot about things going around, चाहे वो पौंड कुंद्रा से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे जो इतने बड़े बड़े दिग्गज जो लोग हैं जो इस टाइम पे गुम चुके हैं कहीं कहीं मिल नहीं रहे, चाहे वो अनिल देशमुख हो, चाहे वो खत्री हो, चाहे वो परमवीर सिंह हो, उनके बारे में. एंड उसके साथ साथ ऑफ कोर्स इस कैंपेन को, इस मूवमेंट को खराब करने वाले जो लोग हैं, दे आर आल्सो काइंड ऑफ पूरे जोरों शोरों में लगे हुए हैं इस मूवमेंट को खत्म और खराब करने में. So I think a lot of people were feeling very hurt, very angry, very upset, and few of them were very passionate about how wrong people are doing in this movement and campaign. So इसलिए we will continue to talk a little bit about Ria, about Khatri, about everybody. But at the same time, I will give the StreamYard link earlier today so that आप लोग भी आ सके. मैंने ट्विटर पे तो डाल ही दिया है, and what I'll do is I'll post it here and I will pin that for you today so that you guys can join anytime you want. So hello everyone. I'm waiting to see more people. एंड ऑफ कोर्स आप में से जो भी आना चाहता है, गुड मॉर्निंग सावी जी, गुड मॉर्निंग सानिका जी, हेलो सतीश जी, जय जय शिव शंभू, धर्मा पटेल जी, वेलकम वेलकम एवरीवन, हेलो वीपी एंड एवरीबॉडी, अबे भाई खनी हम्बा खनी, एंड हु एल्स, और जितने भी लोग हैं, एकता जी, एवरीबॉडी हु इज हियर, मंजू जी, कल्पना, वेरी 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 वार्म वेलकम एक बार फिर से. So this is gonna be a very candid open house, open mic. Open house पता नहीं क्यों निकलता है मेरे मुंह से, but yes, this is gonna be a open mic. I encourage you all to join anytime you want, anything you want to say, good, bad, ugly. बहुत सारे लोग इस मूवमेंट को बहुत ही बुरी तरह से खराब कर रहे हैं, उसके बारे में भी डेफिनेटली हम बात करेंगे, क्योंकि सुशांत के नाम पे इस टाइम पे सब बहुत सारे लोग हैं, सब तो नहीं कहूँगा मैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मज़ाक बना के रखा हुआ है. सुशांत के बारे में बात नहीं करेंगे, बट सुशांत से अराउंड अपने हैशटैग लगा के, अपने नाम को जोड़ के लोगों के बारे में इधर-उधर की बातें करने में ज़्यादा बिज़ी हैं. ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था आज के इस सेशन का. So I joined was my heard last time you had blocked me my messages. Your video came, so I joined live. Was heard that last time you had blocked me my messages. Sanika ji, I don't know, why your message, if it was blocked, I don't know. Please join. Tell me, kya hua tha last time. Yes, we need to save the movement. SS, that's the thing. That is the most important thing. क्योंकि इस टाइम पे ये हो रहा है कि और मैं बिल्कुल कैंडिड, आज मैं भी बहुत कैंडिड और ऑनेस्ट बात करूंगा. आई थिंक पीपल आर बिजी वाचिंग हॉकी गेम. ओके, ऑलराइट. मुझे नहीं पता था कि इस टाइम पे हॉकी गेम चल रहा है. इफ दैट इज द केस, ओके, एंड oh wow, 4-5. It's a model. Got it. India leads 5. Kya baat hai? Very good. Let me actually, in that case, I will definitely wait for people to finish the game as well. 8:29. Okay, India ke hisab se. We are still leading 4-5. So that is excellent. So we are definitely leading, and I think let me check how much more time is left. Yeah, this will be a Olympic medal after 41 years. So really looking forward to this one. Pushing another goal, win, but we have conceded one. Lucas. Okay, 8:29 पे हुआ है last goal.
Thank you for letting me know. I did not know about that. And let's see. Yes, why we not doing justice? Yes, many people. I think people are watching Honey Game. Yes, I'm sure that's why people will take some time because we are almost at the end of the game, and I'm very confident now since India is leading. We will definitely win. Last update is at 8:29. So let me see if I have any other latest update. Okay, so that's the latest, Abhi. Unfortunately, I'm not connected to the VPN, India wale. Otherwise, I could have watched it myself and I would have played it here. Yes, quarter four is going on. And one thing which I really was happy to see was there was one Varun in the hockey team as well. तो जब वो वरुण कुमार कर रहे थे, it was really like a very proud moment. Even though I know इस जन्म में तो I don't think I can be part of any Olympics, but it's always good. 12 minutes ago, 7 minutes ago. Okay, let's see. 5-4. Maybe 5-4 hai. Anyway, so yes, let's focus on that. PC to Germany, who are down to 10, but good defense for India. India lead 834 pay. Okay. So we'll continue to share that. Thank you so much, everyone, for joining. Very difficult to, especially in the morning. That is why I missed your sessions. I know. मैं खुद wait कर रहा हूँ, another couple of days, and I'll be back in my time zone. And I really want, to get back to the regular sessions. But yes, let's kick off this one. Last के हमने 3 सेशन जो किए हैं on Riya Chakravarti. One thing which has been very, very, clear about Riya Chakravarti, uh, she definitely is not, and she cannot quote herself as Sushant's girlfriend. ये एक इतनी बड़ी क्लैरिटी हमें इस सेशन से मिली है, इन सेशन से, that it is very obvious she was there, plotted, placed to do certain activities. कुछ काम करने के लिए उसको भेजा गया था जिसके लिए कौन उनको पैसे देती थी. And of course she was just a stooge sent to get certain work done. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी श्योर कि उस टाइम पे उस काम के लिए जिसके लिए भेजा गया था उसको एक गारंटी दी गई होगी कि यू नो व्हाट, यू गेट दिस डन एंड वी विल गेट यू आउट ऑफ द मैस, in addition to the amount of money that might have been promised. So हालांकि बहुत कम पैसा अभी दिख रहा है. I'm pretty sure there is some source of money waiting for her. या ये जो एडवोकेट इनको मिले हैं इतने कॉस्टली, इनकी फीस वगैरह सब कुछ वही कर रहे हैं. सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट there is some kind of back end mess that has been going on, जो हमें अभी नहीं पता. I see few people join. Guys, if I haven't seen you, if I haven't gotten you on the screen initially, I will not take you without a camera. So पहले तो या तो आप कैमरा ऑन करके मेरे को बैकग्राउंड पे ही दिखा दें. If you're not comfortable on the screen without camera, I will still take you, but I need to see who this person is. Okay, Shweta ji. All right. I will take you, Shweta. बहुत दिनों के बाद. Let me just add you into the screen. Hi, Shweta. कैसी हैं आप? Good morning. आप म्यूट हैं. आप म्यूट हैं. You're mute. Yeah, hi. वरुण, वो जब फर्स्ट से 14th वाला हो रहा था ना, हाँ जी. आपको याद है हम आए थे उस वक्त? राइट. हाँ. हाँ, बिल्कुल याद. हाँ, तो वही हम मम्मी बोली कि नहीं बहुत वेट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह. तो हम बोले नहीं, लेट मी ट्राई, ओपन माइक है, लेट मी ट्राई. नहीं, आज ओपन माइक है. आज मैंने शुरुआत से ही लिंक दे दिया है. अच्छा, थैंक यू. अच्छा, पता है हम ऑनेस्टली बताते हैं, मतलब जैसे जब से दिस होल फियास्को, व्हाटएवर, डिबाकल, व्हाटएवर जो भी बोलेंगे, हम
एक्चुअली में मतलब हमको पिक्चर देखने का मन नहीं करता एक तो, ठीक है? हम रीरन्स देखते हैं सुशांत का और हमको एंड यू नो विथ ऑल द न्यू कैन आई टर्न ऑफ माय कैमरा प्लीज? श्योर, श्योर, श्योर। प्लीज़ गो अहेड, प्लीज़ गो अहेड। थैंक यू। ओके, हैज़ इट टर्न्ड ऑफ ये फिर से ऑन हो गया, आप फिर से ऑन ऑफ करें। या, नाउ नाउ? इट्स हाँ या? जी। ओके, ओके। सो हम कह रहे थे कि हमको कभी देयर इज अ सेइंग इट यूज्ड टू हैपन द जुडिशरी that justice delayed is also justice denied, and the justice has been delayed for way too long now, and I think हम लोग को मतलब everybody knows the truth, but हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं. It's very disheartening. I've become very disheartened. हम लोगों को लगा था ना कि हम लोग कुछ कर सकते हैं. सब कोई तो सब कुछ कर ही रहा है अपने लाइफ में. राइट। नहीं, आप जो डिसहार्टन की बात कर रही हैं, डिमोटिवेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है लोगों में, बहुत सारे लोग इम्पेशेंट भी होते जा रहे हैं। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है श्वेता जी, सिंपल सी बात है। किसी ने सोचा नहीं था, पहली बात तो बॉलीवुड या बॉलीवुड जो भी कहे इसको, इन्होंने भी सोचा नहीं होगा कि इतनी देर ये मूवमेंट चलेगी। सुशांत को लेके इतना ज़्यादा लंबा ये मूवमेंट का उन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। उन्होंने सोचा होगा थोड़ी देर लोग करेंगे, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा, डिप्रेशन पे डाल देंगे एंड दैट्स प्रीटी मच इट। बट आज की डेट में ये 1 साल और 2 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं, एंड स्टिल दिस इज़ गोइंग सो स्ट्रॉन्ग। अ, सिर्फ इतना है जो हमें थोड़ा डिमोटिवेट होने के लिए ऑब्वियसली कि एजेंसीज़ कुछ अपडेट दें, या कुछ ऐसा दिखाएँ जिससे हमें लगे कि इट इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बट अनफॉर्चुनेटली अभी जिस तरह चल रहा है, इट इज़ गोना टेक सम मोर टाइम। जितने भी लोगों से बात हुई है, कल हमारे साथ शरण जी भी थे, उनसे पहले भी हमारे साथ इतने सारे लोग आए हैं। इवन और भी बहुत सारे लोग हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे बोल के गए हैं जी, कि इट विल टेक टाइम। तो इट इम्पेशेंट विल. होना तो डेफिनेटली एंड दैट्स ह्यूमन नेचर। आई वोंट इवन से कि आप ना हो या मैं ना हूँ, मैं भी होता हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे भी कई बार लोगों के साथ मैं बात करता हूँ यहाँ पर या कहीं पर भी या फ़ोन पे भी, मैं खुद भी कई बार पेशेंस लूज़ कर जाता हूँ यार कि अब बस करो यार, इतना टाइम ऐसा क्या हो गया जब हम लोगों को दिख जाता है सब कुछ, इन लोगों को क्यों नहीं दिख रहा? बट then I also recollect कि some of the people from the agencies who I've talked to and I've interacted with, उन्होंने बिल्कुल साफ हम्म. बताया कि जब तक बिल्कुल सॉलिड केस नहीं बनता, जब तक सारे एविडेंसेस 100% वैलिडेट नहीं होते, कंफर्म नहीं होते, तब तक these agencies will not file any kind of charge sheet, will not file any kind of, ये 302 नहीं होने वाला तब तक। So we have to have the patience. The other problem I see, again, I would love you to speak as well, but the other problem I see in this movement as well is कि जो बाकी लोग हैं, वो लोग भी इसके अंदर, they've taken such a big U-turn, a lot of these people, and they're trying to now shift gears and किसी के ऊपर भी कोई भी टारगेट करके नाम बदल के they are just demotivating others and they're kind of distracting them. हम लोगों को वो भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एज़ अ कॉमन मैन हम अपना घर देखें, जॉब देखें, फैमिली देखें या इन सब लोगों से अपने आप को दूर रखें या बचाएँ, इट्स नॉट पॉसिबल। Like I've always said, there are so many people doing so much stuff on social media, on mainstream media and other way. तो हर जगह पर जाओ और वहाँ पर लोग उल्टी-सीधी बातें करें, तो लोग ऑब्वियसली डिमोटिवेट होंगे। But there is nothing to be demotivated. I would say, just stay focused, just think about Sushant, just talk about Sushant, and that's pretty much it. You will get the motivation that you need. आपको किसी की ज़रूरत नहीं और अगर फिर भी लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, talk to some of those people who really are here for Sushant. You've 1 साल हो चुका है आपको, अब तक बहुत सारे लोगों के बारे में पता चल चुका होगा कि किससे मोटिवेशन मिलेगी और किससे हम डिमोटिवेट। Stick to those people and talk to them.
हम भी छोटे-छोटे कुछ एक इधर कोई ग्रुप, कोई लोगों से बात, कई बार अब तो मुझे भी ऐसे होने लग गया है, व्हेन आई नीड समबडी, आई हैव कपल ऑफ पीपल हू आर लाइक साउंडिंग बोर्ड्स टू मी। I just reach out to them. I talk to them कि यार ये इसका क्या करें, उसका क्या करें, and these people are always there for me, and I'm sure they also know कि whenever they need, I am there for them. So ऐसे अपने एक एक वो बनाए, pods, जिसे कहते हैं ना, comfort pods, where you go, you talk, you understand the whole scenario, a clear mind से, and it's always good to have a third eye or a different perspective. यही मैं तो सबको कहूँगा। आप म्यूट चली गई श्वेता जी। Yeah, Varun, can you hear me? Yes, now I can hear you. Okay. You were breaking up real bad, so I couldn't get the. नहीं, मेरा आवाज ठीक आ रहा है? हाँ, आपका तो बिल्कुल आ रहा है। मेरा नेटवर्क तो ठीक है। I don't know why it would was breaking. I don't know how much you could hear. Is anybody else? It could be mine. नहीं, Could आपकी be तो मुझे mine. आवाज़ Oh, wait बिल्कुल up. क्लियर आ रही है स्काई। I've Let me know turned if you on can hear. mobile data and Wi-Fi and everything. Right, right. So guys, let me know if you can hear me properly now, if it is my network or Shweta's network. And I would love more people to join. So I am pinging. Sounds great. Okay, thank you. So I have just posted. Your voice is clear, Varun. Yes. So thank you so much. So that's what I was saying. And Shweta ji, आपकी आवाज भी आ रही है. तो आप बताएं. I like I said, I understand the I'll just reason. come back. Sure, sure, sure. Sounds Okay. good. Okay, yeah. If you guys can hear me, Yes, we can. अच्छा, हम हम एक बात पूछना चाहते हैं, जैसे अ, हम भी मतलब मोस्टली बाहर ही रहते हैं, अ, तो अभी हम यहाँ हैं, मतलब रांची में, पटना में। अ, जब हम अपने मतलब अमेरिकन फ्रेंड्स लोग से बात करते हैं ना अबाउट दिस केस और ये वो, आप अपने नॉन इंडियन फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करते हैं इस केस को लेके? Non-Indian, yes. Occasionally, जब मौका मिलता है, we did certain campaigns. हम सिटी में गए थे. Otherwise, in and around. जी। उनके साथ हम थोड़ा बहुत, कुछ Caucasian, कुछ एशियन लोग हैं, जो लोग देखते हैं। आपको मैं एक चीज और बताता हूँ। मेरी कार के बैक पे सुशांत की 2 फोटोग्राफ्स रखी हुई हैं। तो मेरे से कई बार उस चीज को देख के लोग पूछते हैं कि ये क्यों, किसकी फोटो रखी है, बिकॉज नॉर्मली यहाँ यूएस में ऐसा नहीं लोग रखते, और रखते भी हैं तो इट इज फॉर अ सर्टेन रीजन। तो मेरे वो जो हम्म। हुई है, तो लोग मेरे से पूछ लेते हैं कई बार पार्किंग में या अदरवाइज कि ये कौन है, क्या है। एंड दैट्स व्हेन ग्रेट, एक एक मिनट के लिए मैं पॉज लूंगा, बिकॉज लुक्स लाइक द टाइम इज ओवर एंड इंडिया हैज won the match, and we have the, I think, the bronze. Not bad. Yep, Yeah. India wins men's hockey bronze medal, which means after 41 years, India has a Olympic medal in Yeah. hockey. So great. Yeah. So congratulations, Hockey everyone. is our national sport, right? It is. And yes, so congratulations to Team India. We've won it after 41 years. And yes, that is great. Yeah. 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 I mean, इससे भी अच्छा ही होगा नेक्स्ट टाइम, लेट्स होप सो, Absolutely. बट I mean, bronze is also great, Yeah, but eventually it's Olympic medal. Olympic, yeah, Yep. yeah. Proud of, yeah. अच्छा, आई हर्ड, अभी तो हम इंडिया में है ना, तो हम हाँ, सुने हैं कि सीडीसी ने बोला है कि यू कैन नॉट मूव आउट ऑफ योर हाउस विदाउट अ मास्क एंड थिंग्स लाइक दैट। हाँ, बहुत सारी सिटीज में शुरू हो चुका है ये। स्पेशली यहाँ न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में हो गया है, और मैं सुन रहा हूँ कैलिफोर्निया में भी शायद हो गया है। सो आई हैव हर्ड ऑफ दैट। ओके, ओके। या, Oh, yeah. ऑलराइट। Well, Sushant, let's just pray for the best, hope for the no.
Be prepared for the worst and hope for the best. Right, exactly. Yeah. But I would say यहाँ पर uh, I'm very confident we will definitely get a lot of these people uh, who are culprits in multiple issues. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुशांत. The cabal, entirely cabal, is involved in so many things uh, that we are really really hopeful that they will be caught for sure. Right, right. I mean, we are coming to know of things that we had no idea of. I mean, things like Raj Kundra issue and she is pretending to be an Abla Nari, Right, Shilpa Shetty. I mean, what? This is such a. I mean, how can you not know? I mean, हम समझ सकते हैं कि गांव की होती है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता और ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम समझ सकते थे। right, right, ये तो खुद अपने मतलब शी इज दिस सेल्फ मेड काफी आई मीन शी इज प्रीटी मच सेल्फ मेड हरसेल्फ right, right. एंड नहीं, मैं उसके ऊपर भी glad that you brought this up. It's very clear. जब इतने बड़े बड़े purses, bags and everything that they do, right, all the parties and the international travel, सब कुछ होता है, तो obviously they know exactly कहाँ से पैसा आ रहा है. It's not के they were in some kind of a long distance relationship. They were living together, they were staying together as husband and wife. ये कहना कि किसी को ना पता हो, यहाँ पर जैसे अगर मैं अपना ही इसके ऊपर हर चीज पे जैसे मैं अपने आप को कई बार रिलेट करने लग जाता हूँ या एसोसिएट करता हूँ. अ, बड़ी क्लियर सी बात है कि इफ एज अ हस्बैंड एंड वाइफ यू आर staying together, you will know pretty much about 90 to 95% of the times what's going on. अगर मैं कहीं से कहीं से पैसा एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ या कहीं से लेके आ रहा हूँ, तो सबसे पहले बीवी यही पूछेगी कि भाई ये कहाँ से आ रहा है? कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, राइट? कोई करेक्ट बिज़नेस तुम करेक्ट सेटअप करोगे तो डेफिनिटली द बिज़नेस नीड्स टू बी रजिस्टर्ड, देयर हैज़ टू बी अगर अपने बेटे के नाम पे अपना बिज़नेस खोल रहे हो, you cannot just do it all by yourself. You always talk in a family setup. You know what? कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कर रही हूँ और इसके ये repercussions होते हैं, इसके ये tax के repercussions है. I mean, there are so many things that really you need to need to be discussed and exactly. So need ये to be किसी का followed कहना on, yeah, एब्सोल्युटली, ये yeah, शिल्पा शेट्टी का yeah. ये कहना कि भाई साहब हमें तो पता नहीं था. आपको ये कैसे नहीं पता था कि वो जो आप 1-1 लाख, डेढ़-डेढ़ लाख के पर्स लेके घूम रही थी या शॉपिंग करने जा रही थी, उस टाइम पे उसके पैसे कौन पे कर रहा था? कहाँ से आ रहे थे? और एंड ऑफ द डे ऐसा तो होता नहीं है कि कोई अनलिमिटेड एटीएम खुला हुआ है हर किसी का, राइट? सो यू नीड टू नो व्हाट इज़ योर kind of bank balance and what is your kind of buying power. So अगर इतना हो रहा था, इतना आप सेलिब्रेट कर रहे थे लाइफ को इतने सालों से, आर यू फूलिंग अस? आई मीन, डू यू थिंक वी आर फूल्स दैट वील थिंक कि आपने आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता? Honest money है, yeah, 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 ऑब्वियसली yeah, yeah. मैं तो ये तो किसी का भी कहना, एज एज ये तो कल को ये बात हो गई कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के घर में अगर ऐसा कुछ हो और जया बच्चन कहे कि पर मुझे तो पता नहीं था कि अमिताभ बच्चन का रेखा के साथ अफेयर चल रहा था. आर यू किडिंग मी? मतलब कुछ भी बोलोगे और हम लोग बेवकूफ बन जाएंगे, ऐसा नहीं चलता बॉस. तो ये जो हम्म, सिंपैथी गेन करना, राइट? और ये वही हैं जो सुशांत के लिए जिनसे पूछा जाए तो ये कहती हैं कि यार मत भरो यार, मरवाओगे क्या, एंड ऑल दैट स्टफ. भाई, हम्म, यू चोज द पब्लिक लाइफ. आई वाज रियली हैप्पी द वे कोर्ट ने इनको जवाब दिया. इट इज रियली रियली, आई वाज रियली हैप्पी कि भाई यू चोज द पब्लिक लाइफ, राइट? पब्लिक लाइफ ने correct, आपको नहीं किया. correct, हाँ, correct, exactly. They are known as celebrities because they have chosen to be that one. I mean, हम लोग जैसे uh, I mean, we are different. हम लोग हम लोग चाह कर भी परहैप्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने चूज़ किया कि हमको फेम चाहिए, फॉर्च्यून चाहिए, पैसे चाहिए,
उसके लिए हम ये करेंगे। अब आप उसको ये नहीं कर सकते, यू बिकम अ प्रॉपर्टी of the media, you become a property of people if करेक्ट, you want to enter the whole setup of uh, any, whether it's politics or it's anything, business or anything like that for that matter. करेक्ट, करेक्ट. No, Yeah. one thing which I'll be very honest about. I respect every single individual as a human being. You can command respect. You can command privacy. You can command dignity for you, yourself, and your family. But Uh-huh. when you become a public figure, public figure banna is more like a social responsibility. It comes with a lot of things. While you're enjoying the fame, you're enjoying the money, while you're enjoying all the goodies, this thing also comes with it. You do one wrong thing, ऐसे ऐसे लोग हैं, और यूएस में भी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, एक गलत काम एंड देयर एंटायर करियर, देयर ऐसे लोग भी हैं जिनके वॉक ऑफ फेम में से स्टार्स को भी निकाल दिया गया जस्ट बिकॉज दे डिड सर्टेन रॉन्ग थिंग्स. So Yeah, you yeah. you have to be open for everything. You cannot say जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक आपको फेम अच्छा लग रहा है तब तक आप पब्लिक फिगर बन के रहेंगे, और अगर आपने कुछ गलत किया है doesn't mean that people will not ask you questions or people will not point fingers at you. That's never gonna be the case. और अब जब हमने सबने क्वेश्चन करना शुरू किया तो इनको लग रहा है कि पब्लिक में बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है, आई एम अ पब्लिक फिगर, मेरे बिजनेसेस इम्पैक्ट हो रहे हैं. तो बिजनेसेस तो इम्पैक्ट होंगे बॉस, कैसे नहीं होंगे. Hmm. यू हैव डन एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग. जब आपको पता था आपके हस्बैंड ये कर रहे हैं और आप इंडियन सिटीजन होके देख रहे हैं, या तो आप किसी और कंट्री में बैठे होते जहां पर अलाउड होता, तो वहां करती आप, निकल जाती इंडिया से. Hmm. और भी तो निकले हुए हैं इंडिया से जो Hmm. अपने आप को ज्यादा ही देशभक्त दिखाते हैं पर है एंटी इंडियन, एंटी नेशनल, और Hmm. पाकिस्तानियों के साथ मिलके, आईएसआई एजेंट्स के साथ मिलके अपना घर चला रहे हैं, बट Hmm. निकल जाती. सो यप, आई मीन दैट्स देन, but they all know what Sushant is doing. Absolutely. बहुत अच्छे comments, Soheli, I really appreciate, everybody putting up such beautiful comments, and और लिखें बल्कि, because hopefully I'll be able to kind of take this and post it on Twitter as well. So they say, Pon Kundra was involved in so many immortal stuff that Shilpa eventually lost track and thus is suffering from amnesia. Uh, she doesn't know that husband is doing, but they all know what Sushant is doing. एंड छतरी को भी खोल दो अब. एब्सोल्युटली वी आर. सो कृष्णा जी, आप भी आ गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हाय वरुण, हमको बस एक बात और बोलना था बस. कृष्णा जी, हेलो. आई नमस्ते. जस्ट वांट टू से वन. नमस्ते सर. सर, एक मिनट बस, लास्ट पॉइंट एंड देन आई श्योर. लीव. हम ये बोलना चाह रहे थे, दिस टाइम विद द राज कुंद्रा थिंग, आई एम प्रीटी सरप्राइज विद द जुडिशरी इन द सेंस दैट वो बेल नहीं दे रहे हैं. दे आर बीइंग वेरी कंजर्वेटिव विद देयर यू नो जो भी उनका जो होता है, the hardest way that they can handle it, they've come with a like a iron, वाला जो एक होता है ना, which या is a very strange thing because these people do things and they get out of it. राइट. मैं इसका Have इसका you? इसका मेरे पास सिर्फ एक ही क्लियर आंसर है, और होपफुली दिस इज, वन सेकेंड, या, सो इसका बहुत क्लियर सा एक आंसर है. इफ यू नो और इफ यू रिमेम्बर, मिस्टर कुंद्रा ने थोड़ा सा मजाक उड़ाया था सलमान खान का. ठीक है, तो Hmm. उससे सिर्फ इतना मैं कहूंगा कि वी ऑल शुड अंडरस्टैंड ही इज नॉट पार्ट ऑफ दैट गैंग, द सो कॉल्ड गैंग, Hmm. हाई गैंग. ओके, दैट इज वन. सेकेंडली सेकेंडली बहुत क्लियरली मैंने ये इंटरव्यू सुना था. द न्यू कमिश्नर ऑफ मुंबई, राइट, कमिश्नर ऑफ पुलिस, he Hmm. he said in one of his interviews, जो इनिशियल जब वो हुए थे, तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि it will take them a little time to reset Hmm. their image, but they are working very hard to make sure we get back to the olden golden glory days of Mumbai police,
and we make it back Mhm. to the Scotland Yard. Now, if I connect both together, मेरे हिसाब से मेरा एनालिसिस और मेरा जो थोड़ा सा इसके बारे में समझ है वो ये आ रही है, उनको ये एक मौका मिल गया ये दिखाने का कि मुंबई से बॉलीवुड से रिलेटेड कोई एक ऐसा इंसान है जो उस भाई के गैंग का भी नहीं है, जिसको शायद अंडरवर्ल्ड का उतना सपोर्ट नहीं है, उसको पकड़ा है तो उसको अच्छे से पकड़ के उसका ऐसा दिखाओ कि ये लोगों को ये दिखे कि भाई he's the Mumbai police is actually doing the right thing and right work. So I think Hmm. Hmm. that is what my understanding says right now for this case, because the way it is going on right now, मुझे भी नहीं Mhm. लगता कि ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि Hmm. पवन कुंद्रा जल्दी कहीं छूटने वाला है। एंड Mhm. मुंबई पुलिस को कहते हैं ना, एक वो किस्मत अच्छी है मुंबई पुलिस की, मैं तो यही सिर्फ कहूंगा इस चीज में कि उनको ऐसा एक केस मिल गया जिससे वो अपनी इमेज को थोड़ा दिखा सकते हैं, थोड़ा सुधर बेटर कर सकते हैं, हाँ, एग्जैक्ट। राइट, राइट। And that's why I am a little even though I'm happy, but I'm a little worried for शिल्पा शेट्टी, जो कि दिखाने को बहुत दिखाती थी कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग उसका फ्रेंड सर्कल एंड ऑल दैट, but at the same time, right now the way things are going, I'm sure she's also very worried about that. So that is there. वरुण, आपको लगता है कि any of her political allies or wherever she is bending towards, they're going to come out and openly help her? She is dreaming on. Exactly. Nobody is going to come and do anything. Correct, So correct. कोई भी right, हाँ, तो बस बस यही कहना था। I'll come back, I'll listen to you guys, मतलब बाहर से श्योर हम श्योर। बस इतना ही बोलना चाह रहे थे। एंड श्योर। Varun, hats off to you. You're still doing the thing. I'm not able to follow every day now, but मम्मी या तो देख लेती या तो हम देख लेते हैं, and we discuss and we come to know कि अच्छा आज ये हुआ, अच्छा आज वो हुआ, ऐसे ही। थैंक यू सो मच, और आंटी को भी मेरी तरफ से नमस्ते। एंड जरूर। absolutely, it's not easy, but yes, we'll continue to do that for sure, for as long as we can. हाँ, हाँ, एक बात और, हम बहुत खुश हुए ये जान के दैट सीबीआई ने जिया खान वाला केस को भी रीओपन, या उन्होंने दे हैव फाइनली अग्रीड टू लुक इनटू इट। इज दैट राइट? आई मीन, इज दिस द करेक्ट वे टू पुट इट? ऑलराइट, सॉरी, एक बार फिर रिपीट करना जरा, मैं म्यूट हो गया था हम सो। बोल रहे थे हाँ जी। हम बोल रहे थे कि वो जिया खान वाला केस जो था, हाँ हाँ जो मैम राबिया मैम, हाँ। आई मीन पोस्ट टू पिलर रन कर रही थी, राइट and finally CBI has agreed to look into it. राइट 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 राइट। Right. I या mean, that is also some great news for people like normal people like us. I mean, for me at least. I mean, I don't know who you are and what kind of, but I'm saying normal middle class people. उनके लिए एक रे ऑफ होप है ये सब, ये ना, correct, कि correct. No, हो सकता that है। is huge hope, ray of hope. I would not say कि छोटी है, क्योंकि she's been running from pillar to post, no doubt about it. She has put in a lot of effort, money, time, her own self, पूरी family की commitment, after losing a daughter. The grit that this lady has shown is really commendable. और आज की डेट में अगर ये पहला एक पॉजिटिव स्टेप दिखा है, दिस इज अ ह्यूज स्टेप, आई वुड से। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि उनकी राबिया जी को एक वो सेटिस्फैक्शन मिला कि एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप हुआ है। एंड नाउ वी करेक्ट, करेक्ट। हैव टू प्रे कि नेक्स्ट स्टेप भी बहुत ही जल्दी हो, जहां पर हम्म। दीज कल्प्रिट्स, ये पंचोलीज, ये खान्स, ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एंड they really need to be screwed up big time and kicked out of the industry. बहुत गंद करेक्ट। में रखा हुआ है।
बहुत गंद। आई मीन हमको नहीं लगता है कि देयर इज एनीबडी इन द इंडस्ट्री राइट, जो क्लीन है, दैट चाहे इज़ वो कोई भी हो। मतलब आल्सो ट्रू। अ, हम हाँ, सुने थे, बस हम एक बार सुने थे कि इरफान जो चले गए, ही वॉज अ वेरी रेगुलर काइंड ऑफ अ पर्सन। हाँ, अदरवाइज देर इज मतलब नो, मतलब क्या बोले, राइट, no rumors, there were no bad things said about him. ऐसा तो नहीं था कि he was some attached to some anything, no, मतलब किसी के गैंग में तो थे नहीं वो। And I have heard from somebody close to the Bollywood industry that he was actually a cool guy, and he was a terrific, of course, a terrific person, and he did his own stuff and went back home to spend time with his family. That's it. या या नहीं, Yeah. एब्सोल्युटली। और मैं देख रहा हूँ अभी चैट में फिर से हमारे डॉट आ चुके हैं। बहुत महीनों से आ रहे हैं एज़ यूजुअल और बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। सो कृष्णा जी, आप जो चैट देख रहे हैं प्राइवेट में वो बहुत 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 महीनों से हमारे को ऐसे ही आके आई वुड से डिमोटिवेट कहें या मोटिवेट कहें, नेगेटिविटी से करते हैं और उसको उनको लगता है कि हम नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो व्हिच इज़ व्हाट इट इज़, तो हम अपना काम कर रहे मुझे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हंसी आ रही है ऐसे बेवकूफों पे। ऐसे बहुत आते हैं इनको और लगता है कि ये शायद मुझे ऐसे आके कि लोगों को गुस्सा दिलाना चाहते हैं, आपको या और लोगों को अब मुझे जो नहीं है, चैट पे। तुम चैट में थोड़ा होने लगे थे, मुझे लगा तभी मैंने देखा एकदम से कि भाई रुक जाओ। अब मैं नहीं, सो फॉर पीपल हु आर जिन्हें नहीं समझ आ रहा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, इस टाइम पे मैं, श्वेता जी और कृष्णा जी स्ट्रीम यार्ड पे हैं। और चौथा इंसान जो हमारे साथ स्ट्रीम यार्ड की बैक एंड पे बैठे हैं वो हमारे फेवरेट डॉट है। ये डॉट अपना आईडी लेके आते हैं, सिर्फ डॉट, और बहुत अच्छी-अच्छी बातें करते हैं चैट में, बहुत कुछ हमें डिमोटिवेट करने के लिए या हमें रियलिटी, इनके हिसाब से ही हमें रियलिटी दिखाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं, चैट में लिखी जा रहे हैं बहुत देर से। मैं ऑब्वियसली जैसे कृष्णा जी ने बोला कि शायद गुस्सा दिलाने के लिए या थोड़ा वो करने के लिए करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाता यार, मैं डिमोटिवेट नहीं होता, मैं गुस्सा नहीं आता। वाला क्या है, गुस्से वाला ये है भाई, आप अब आप चैट भी कर रहे हो, तो मैं भी आपको जवाब दे देता हूँ, गुस्से वाला नहीं है। आप ये बताएँ, आप खुद सोचें, अगर कोई मूवमेंट को आगे लेके जाना चाहता है या उसका एक एक छोटा-सा पार्ट बन के इसको बारे में बात करना चाहता है, उन लोगों को एक्सपोज़ करना चाहता है, उनके बारे में बात करना चाहता है जो इसमें इन्वॉल्व्ड है, और आप आके ये कहें कि कुछ होने वाला नहीं है, तो इसको नेगेटिविटी ही कहेंगे। मुझे नहीं पता आप फेंकूगंज, अरे आप, अरे मैं एक हूँ, अरे आप एक ही, हम भी एक ही हैं, एक-एक करके बहुत सारे लोग हैं। हम लोग ऐसे ही जुड़ते हैं, ऐसे आप जैसे लोग बहुत मिलते हैं और बहुत आते हैं। दे ट्राई टू डिमोटिवेट एवरीवन। अभी जैसे श्वेता जी ने भी बात की थी, डीमेट मोटिवेट होने की या देख के कि इतना टाइम, आप जैसे लोग जब ट्विटर पे या किसी सोशल मीडिया पे लिखना शुरू करते हैं, रियलिटी दिखाना शुरू करते हैं, आपकी लैंग्वेज में, या आप ये बताना चाहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला और एजेंसीज काम नहीं कर रही या एजेंसीज ऐसी ही काम करती है, प्रेशर, ये जो भी जितनी भी आप सारी बातें कर रहे हैं, हम यू नो हम भी उस सिस्टम में रह चुके हैं, हमें भी बहुत सारी चीजें पता है। बट होप एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर यूएस में एक फर्स्ट टाइम एक ब्लैक प्रेसिडेंट बना था। वो एक होप थी इस कंट्री को कि कभी ये होगा इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस। अगर वो हुआ, किसी ने नहीं सोचा था डोनाल्ड ट्रंप इस कंट्री का प्रेसिडेंट बनेगा, वो भी हुआ। इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे राम जन्मभूमि के बारे में इतना कुछ हुआ, मंदिर कहाँ बनना था और कहाँ नहीं बनना देखो था। आज उस फैसले को 2 साल हो जाएंगे पूरे मेरे ख्याल से। और कश्मीर की 370 की धारा, हाँ, वो एग्जैक्टली, भी मत बोलो। राइट। बहुत सारी चीजें, मैं वही बता रहा हूँ, इतनी सारी चीजें अगर हम बोलना शुरू करें तो डॉट आप आए, मैं आपको शुरुआत में जरूर ब्लॉक करता था, बट अब मैं आपको भी ब्लॉक नहीं करता, एंड आई विल नॉट ब्लॉक एनीवन, दैट्स व्हाट। अगर आप बिल्कुल, नहीं नहीं यार, ये आएगा ही नहीं। ये हाँ, ये फट्टू है, स्क्रीन पे फट्टू स्क्रीन पे आनंद तो, के चेले हैं ये। हाँ, स्क्रीन पे तो आप ऐसे लोग नहीं आते, विच इज फाइन।
but at the same time I will be very very respectful. आप आए, I respect your opinion as well. आप जो बोलना चाहती हैं और या बोलना चाहते हैं, आप जो भी हैं, प्लीज कंटिन्यू टू डू दैट, एंड आप हमेशा एक चीज बोलते हैं डॉट, वन थिंग विच यू ऑलवेज से, कि हम भी एंड तक हैं, तो मैं भी उसका जवाब यही देता हूँ कि हम भी एंड तक हैं, तो एंड तक देखते हैं क्या होता है, क्या इसका कंक्लूजन होता है। एंड आई विल डेफिनेटली चाहे मैं यूट्यूब पे हूँ या ना हूँ, जब तक हूँ, जब तक एग्जिस्ट कर रहा हूँ इस मूवमेंट में, किसी ना किसी तरह से तो मैं कनेक्टेड रहूंगा, तो आई विल डेफिनेटली सी यू। ये डॉट नहीं आएंगे जी, इनको मैं बड़ी बार बोल चुका हूँ, यू नो व्हाट, या बिकॉज आप कैमरा और ऑडियो दोनों ही ऑफ करके आते हैं, तो मैं आपको स्क्रीन पे भी नहीं ले पाता, बट दैट्स फाइन। प्लीज कंटिन्यू, बट कृष्णा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे पौंड कुंद्रा के लिए या किसी और के लिए? कुंद्रा को तो देखिए, आप आपके सामने 2019 में उसकी एफआईआर फर्स्ट टाइम हुई थी, तो 2021 में पकड़ा गया है वो, राइट। तो टाइम लगता है इन चीज़ों में, हमें नहीं पता था आज से पहले कि कोई केस चल रहा है Yeah, कुंद्रा के ऊपर, कोई एफआईआर है। अभी तो सुशांत का केस आप देख लीजिए, आपके सामने है, वो 1 साल पहले एफआई सीबीआई को केस मिला था, तो कितना बड़ा केस होगा ये, जो कितने लोगों को निकाल के लेके आना पड़ेगा, तो जाके वो जो एंड में आपको टॉप हेड दिखाई दे रहा है, जैसे पॉन इंडस्ट्री का राज कुंद्रा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे यहाँ पे भी खत्री या कोई और बड़ा सेलिब्रिटी की बॉलीवुड से आपको निकल कर आएगा, ये तो बात डेफिनेटली कंफर्म है ही है। yeah, इसमें कोई आप कोई भी कुछ भी कह ले, आप रुके मत। मैं तो कहता हूँ पर जो ये एक तरह से डोमिनो है, ये श्रीदेवी का केस, जिया खान का केस, दिशा, सुशांत, ये जितने भी जो 14 मर्डर्स हुए हैं सुशांत के आसपास, ये सब एक साथ ही खुलेंगे। और अगर हम, मेरे ख्याल से हमें श्रीदेवी का भी केस के लिए हमें पुशअप करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि श्रीदेवी की एनआईए के साथ केस खुलवाना चाहिए, जैसे yeah, कि जो डॉक्टर, क्या नाम है, दीप्ति नाम है उनका, जिन्होंने केस खोला हुआ श्रीदेवी के लिए, तो वी शुड सपोर्ट हर मोर फॉर इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। भाई उसकी, श्रीदेवी की भी एक एनआईए से इंक्वायरी करानी चाहिए, वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट फॉर, right. इसके भी एक कैंपेन हमें और फोर्स करना चाहिए। See, the problem is, श्रीदेवी के केस में आज की डेट में बिल्कुल क्लियर एक स्टेटमेंट तो जरूर बोलूंगा, till the time the family doesn't raise these questions, हम लोग जितना मर्जी शोर मचा लें, कैंपेन्स रन कर लें, if the family has agreed to a certain thing, उस केस के अंदर सिर्फ ये हो सकता है कि हम अपने कैंपेन, हम अपनी मूवमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं। इवेंचुअली इट विल बी अप टू द फैमिली। और हमारे इस पूरे जर्नी में हमने श्रीदेवी की फैमिली का तो साफ हाल देख ही लिया है कि वो किस तरह इस चीज में हेविली इन्वॉल्व हैं। जब उनकी अपनी बच्चियों को नहीं पड़ा, तो बाकियों को क्या करे, किसी का क्या बोले। And that is the very very sad state of affair around Sri Devi case. At least in Sushant case, in Jia Khan case, at least family is still standing strong. Sridevi का केस अगर देखा जाए, kind of very similar, I would say, related to दिशा, क्योंकि दिशा के पेरेंट्स भी बिल्कुल चुप हो चुके हैं, बिल्कुल उन्होंने टॉपिक ही नहीं छेड़े, जबकि श्रीदेवी के केस में फैमिली माइट बी इन्वॉल्व, बट दिशा के केस में तो फैमिली को आना चाहिए था, इज व्हाट माय टेक इज। बट व्हाई दे आर नॉट कमिंग, व्हाई दे आर नॉट टेकिंग पब्लिक सपोर्ट, व्हाई दे वांट टू बी क्वाइट, इज बेस्ट नोन टू देम। एंड वी शुड जस्ट रिस्पेक्ट फॉर श्योर, बट एट द सेम टाइम अपने लेवल पे हम दिशा के लिए जो कर सकते हैं वो तो हमें करना ही है। बट विदाउट द फैमिली, ऑब्वियसली दिशा की अगर फैमिली में से एक भी, मैं तो यही कहता हूँ, चाहे भाई हो, चाहे मम्मी हो, कोई हो, एक भी आके बाहर कह दे कि वी नीड सपोर्ट, and that's pretty much it, that is enough, but unfortunately they're not, so राइट। that's the biggest problem right now जो हमारे साथ है। और श्रीदेवी के केस में तो इतने सारे और स्कैम्स हो चुके हैं और इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं। एक वो भी बहुत बड़ा चक्कर है कि किसको बिलीव करें, किसको ना बिलीव करें। that's again is a bigger thing। and यहाँ सुभाष श्री जी कह रहे हैं पार्टीज के बारे में, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं जरा सा टच करूंगा, एंड आई लव ऑल ऑफ यू टू आल्सो, एंड आई हैव पोस्टेड द लिंक, मोर पीपल शुड जॉइन। आई नो Judy, you wanted to join, so please join, and Sonal, whenever you want you can join as well, और जिससे भी ज्वाइन करना है।
पॉलिटिकल पार्टीज को इन सब चीजों से प्लीज, मेरी खुद की पर्सनल सिर्फ रिक्वेस्ट है, इनसे बाहर रखें। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो आप हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इट रियली डजंट मैटर। कांग्रेस इतने साल कंट्री को रूल किया, क्या हुआ? बीजेपी ने अभी रूल कर रही है, कल को कोई और रूल करेगी। ये लीडर्स सब एक दूसरे के साथ, दे आर ऑल फ्रेंड्स। आपको सामने जो मर्जी दिखा लें ये लोग, ये पीठ पीछे सब के सब, सारे के सारे एक जैसे हो जाते हैं। कल भी मैं एक एग्जांपल दे रहा था, लालू के खुद की अपनी बेटा या बेटी की शादी किसी ऐसे लीडर से हुई है जो उनकी ऑपोजिशन टीम से है, पार्टी से है। तो यहाँ पर ये सब चीजें बहुत छोटी हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल एफिलिएशन, ये मैटर नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट कि जो सही लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी टीम में हो, इट इज द यू हैव टू सपोर्ट दैट इंडिविजुअल। पार्टी को आप अगर एक अलाइन कर दें कि ऐसी मुझे एक पार्टी बता दें हमारी कंट्री में, एक पार्टी जिसके अंदर जीरो, मैं कहूंगा जीरो, या चलो 1% भी आप कह लें, वहां पर क्रिमिनल्स ना हो। हर पॉलिटिकल पार्टी में कोई ना कोई पोजीशन पे ऐसा बंदा बैठा है जिसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो जेल जा चुका है, चाहे वो कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर है, या मर्डर करके ही बैठे हैं, या हवाले करे हुए हैं, या पैसे खाए हुए हैं, मतलब यू नेम इट एंड देव डन ऑल दैट। कोई बड़े से बड़े यहाँ पर लोग, वो स्वामी जैसे को, जो इतने पुराने लीडर हैं, उनको नहीं छोड़ते, प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं छोड़ते, तो किसको छोड़ेंगे? सो दे विल कंटिन्यू टू name, defame anybody around any political party. But it's up. I always say that. या And चोर चोर मुझे रे भाई। एग्जैक्टली। तो ये जो कहना कि इस टाइम पे ये आपने एक मैं छोटा सा फिर से वही बोलूंगा एग्जांपल, आई नो पीपल विल पिक दिस अप एज वेल एंड फिर उसका इशू बनाएंगे, बट दैट्स फाइन। सुशांत के केस में बहुत रोना धोना ये चला था जी कि ये पटना के इलेक्शंस, बिहार के इलेक्शंस हो जाएं, सब कुछ बाहर आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगले भी इलेक्शंस आएंगे, तब भी कुछ नहीं होगा। आप ये इलेक्शंस, ये ड्रामेबाजी, ये जो हमें लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स देते रहते हैं कि ये पार्टी स्विच हो गई, ये वो हो गया, तो हमारा कुछ हो जाएगा, ऐसा ये एक एक सिर्फ भ्रम है। कल मुझे शशि जी का एक बहुत अच्छा लगा था, हालांकि आई एम नॉट 100% सपोर्टिव ऑफ दैट, बट जब ऐसी चीजें होती हैं सुशांत से रिलेटेड, उन्होंने 100% सही बोला कि अगर नोटा भी करना पड़ा ना, नहीं देंगे हम किसी को भी वोट। But हुँ, that's हुँ। not, unfortunately, that will bring us all into a deeper problem. That's the biggest problem we have. We cannot go with that. हम वो नहीं चाहते। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इसीलिए शायद एक ये मूवमेंट चली थी जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी को इतना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा था, ये होप से कि व्हाट, दे विल डू ऑल द राइट थिंग्स, हुँ, और हुँ। एवरीबॉडी वाज सपोर्टिव ऑफ दैट। तो एक एक करके सब हो भी रहा था, बट आज की डेट में अगर हम देखें, इट्स नॉट हेल्पिंग अस। दिल्ली में बैठ के सीबीआई क्या कर रही है? क्यों नहीं पॉलिटिकली इनको वो किया जाता? अगर ये कहें कि हाँ, दे डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, बट लीडरशिप तो वो तो अकाउंटेबल है ही है ना। वो तो इनसे दे कैन गेट एन अपडेट एंड दे कैन गेट अपडेट फॉर ऑल ऑफ अस। ये तो नाम भी नहीं ले रहे। एंड सुशांत कोई ही वाज नॉट अ रेगुलर गाय यार। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत डेथ्स होती हैं और एक और डेथ हो गई या एक और मर्डर हो गया तो चलो लेट पुलिस हैंडल इट। सीबीआई इज हैंडलिंग दिस इज सच अ बिग केस। सो या आई या मीन, बोले, बोलो बहुत ही बड़ा पेंडोरा बॉक्स है सीबीआई, एनसीबी, एनआईए, बहुत सारे एजेंसीज़ अंदर से इन्वॉल्व हैं इस केस में, करेक्ट। नॉट जस्ट सीबीआई। या और मैं बिल्कुल ये सही, ये भी जैसे कह रहे हैं श्री सुनील जी, हाँ, सही कह रहे हैं, बट आप ये बताएं, हम बार बार एक चीज बोलते हैं सुनील जी, कर्मा विल यू नो गेट एवरीबडी, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके ऊपर कर्मा विल स्ट्राइक। आई ऑल्सो बिलीव दैट। आई एम अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल रिलीजियस पर्सन, आई एंड आई 100% बिलीव इन दैट। बट क्या हम ऐसी कंट्री या ऐसे वर्ल्ड में अब रहते हैं कि हमें अब कर्मा और स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल पावर्स के ऊपर बिलीव करना पड़ेगा टू गेट जस्टिस? Is this all how we will get justice for all the cases, all the murders, all the things? फिर हमारी जुडिशियल सिस्टम, फिर हमारी गवर्नमेंट्स, फिर हमारे लोग, वो क्या है?
So that's what kind of shocks me and gives me a little bit of वो कहते हैं ना demotivation. But at the same time, we still are keeping hopes. We still are supporting the people who we believe will get things done. Mhm. Yep. Hope is the most strongest power after love, I would say. और इस केस में जैसे जस्टिस जैसे इश्यूज में तो होप के सहारे ही रहना पड़ेगा। और बॉलीवुड के साथ हमारी रोज एक लड़ाई है। ये सिर्फ हमें सिनेमा हॉल्स के लिए नहीं है कि बाकी लोग जब जस्टिस आएगा, कोई अरेस्ट होगा तो हमें जस्टिस मिलेगा। जस्टिस, असली जस्टिस वो होगा मेरे ख्याल से जो सुशांत चाहता होगा, कि हम इन लोगों को अपने सर पे ना चढ़ाएं। बॉयकॉट बॉलीवुड में का जो हमने हैशटैग चलाया है, उसमें लोगों को समझाना होगा कि हम बॉलीवुड में क्या बॉलीवीड को कर रहे हैं Yeah, बॉयकॉट। वी वांट टू बैन ड्रग्स, ट्रैफिकिंग। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज़्यादा इंडियन कॉन्टिनेंट में होती है, right, नॉट जस्ट इंडिया, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। बच्चों की, औरतों की, लड़कियों की सबसे ज़्यादा इंडियन कॉन्टिनेंट में हो रहा है। तो इसको एक्सपोज करने का तरीका सबसे अच्छा यही है, हम सबके सामने लेकर आए कि यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमें एड्रेस कर सकते हैं। बॉयकॉट करना है बॉलीवुड को क्योंकि वो गलत काम में इन्वॉल्व हैं, मार्केटिंग करते हैं गलत चीज़ों की, उनके पास पैसा बहुत आ रहा है और हमें वो पैसा नहीं पे करना चाहिए अपनी तरफ से। right. No, तो absolutely. उसी के लिए सेकंड, इसी में सबसे ज़्यादा पैसे ये कमाते हैं टीवी एड्स से, एंडोर्समेंट पार्टीज से। Yeah, तो जो टीवी एंडोर्समेंट से एड्स होते हैं, हमें उसके भी बॉयकॉट करना चाहिए। अब जब भी देख लो प्राइम टाइम पे सारे बॉलीवुड के एक्टर या एक्ट्रेस ही आ रहे होंगे इंडियन हिंदी चैनल्स पे, yeah, correct, correct. चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, सारा अली खान हो, या कोई अक्षय कुमार हो। Yep, उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है उन चीज़ों के लिए। हमें टीवी एंडोर्समेंट कंपनियों को, चैनल्स को मैसेज भेजना चाहिए ऑन ट्विटर, लाइक रिमूव बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और हैशटैग रिमूव बॉली सेलेब्स exactly. फ्रॉम Right. ऑल I द think टीवी you कमर्शियल्स। will definitely start. वैसे मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे चल चुका है बहुत दिनों से, बहुत सारे लोग कर रहे हैं. I think we should also start, tagging along, and I've been retweeting for sure, but abhi, another 10-12 days, उसके बाद we will start some campaigns as well because it's high time we start doing this. I like this hashtag remove Bolly celebs. We should definitely do that. Uh, एक चीज मैं यहाँ पर बिफोर आई टेक जूडी एंड अदर्स एज वेल, मैं जरूर बोलना चाहूंगा यहाँ पर आप क्या नाम था आपका, सनिका जी. सनिका जी, आप जो कह रही हैं, मैं एक बार फिर से फ्लैश कर देता हूँ मैसेज. आई विल टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, और ये मैं हेड ऑन इसलिए भी अब बोलता हूँ, और बिल्कुल उन्हीं के वर्ड में एक ही वर्ड यूज करता हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी डंके की चोट पे बोलता हूँ. क्रिमिनल क्रिमिनल से भी ज्यादा गिरा हुआ इंसान है वो जिसने सुशांत को इतना बड़ा मजाक बना दिया. ये वही है जिन्होंने कहा था सुशांत इज अलाइव. ये वही हैं जो सुशांत को या तो बद्रीनाथ या केदारनाथ, में जगह भूल रहा हूँ कहाँ, इन्होंने बोला था वहां पर लोगों को मिलाने के लिए, लोगों को लेके जाना था मई या जून में. मैं तो वेट कर रहा था क्या हुआ उनके उस प्लान का. अ, क्या हुआ सुशांत कहीं अब जो इनके वाला सुशांत है, जो इनके हिसाब से जिंदा है, क्या हुआ, उन्होंने मिलने से इनको मना कर दिया. जिनके साथ इन्होंने अपना फेस टाइम वीडियो जो भी किया था या मिलके आए थे इन पर्सन, वो अब कहाँ चला गया. ऐसे लोगों के बारे में बात करना, ऐसे लोगों के बारे में किसी भी तरह की डिस्कशन करना, इट्स क्वाइट पॉसिबल मैंने या किसी हमारे एडमिन ने आपको ब्लॉक किया होगा. सो आई डेफिनेटली I will be very firm about it. Somebody who is here only to destroy would be a apt word for him. इस पूरी मूवमेंट को खत्म करने के लिए, रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए जो यहाँ आए हैं लोग, उन लोगों के बारे में किसी भी तरह की बात करना, उनको किसी भी तरह का सपोर्ट देना इज कंप्लीटली अटरली यूजलेस. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे भी आते थे, वो भी अब उधर जाके उनको लगता है कि वहाँ बहुत सही बात हो रही है, एंड यस फैमिली इज द वन हु शुड बी क्वेश्चनड, हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस. आई एम रियली नॉट बॉदर्ड कि कौन कहाँ क्या करने जा रहा है, जाएं आप लोग. मुझे उन लोगों से मतलब ही नहीं है अब, क्योंकि यहाँ पर हम
ना तो यूट्यूब चैनल बनाने आए हैं, ना हम यहाँ व्यूज़ लेने आए हैं, यहाँ पर हम उन लोगों के साथ अलाइन होने आए हैं, जो लोग सुशांत के लिए आज भी रोते हैं, जो अपने बच्चों में सुशांत को देखते हैं, या वो लोग जो इस मूवमेंट के थ्रू अपनी फ्यूचर जनरेशंस को बचाना चाहते हैं। सो uh, really we don't need, even if we are 200, 300, even if we are 100, really doesn't matter. We will continue talking about Sushant, we will continue supporting the family till the very end, and we will not stop. तो ऐसे लोगों के बारे में बात करना is totally disrespectful to Sushant's dad. अब मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी शक्ल याद रखता हूँ जब भी होता है मुझे कि भाई जो भी करना है, just realize or just think about what his father would feel, how his father would behave, how his father would react to certain things. आप भी वो देखेंगे, definitely you will have a totally different perspective. वहाँ पर अगर आपको विजिबिलिटी मिल रही है, अगर आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है, प्लीज़ गो अहेड जॉइन दोज़ सेशंस। मुझे किसी सेशन से प्रॉब्लम नहीं है। ना तो हम यहाँ पर किसी भी तरह की फेक ऑडियो फाइल्स रिलीज़ करने वाले हैं, ना वीडियोज़ रिलीज़ करने वाले हैं, ना डायरीज़ रिलीज़ करने वाले हैं। अगर कुछ आएगा हमारे पास, तो येस, वी विल डू अ लिटिल बिट ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना वैलिडेशन, एंड देन विल ब्रिंग इट अप इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम नॉट गोना डू दैट। ना उससे मेरे को एक चीज़ याद आ गई है, इसलिए मैं ज़रूर शेयर कर देता हूँ अभी आपके साथ। बहुत सारे लोग हैं, हालाँकि मैंने पहले भी शेयर किया था। Due to certain issues with YouTube, certain issues between YouTube and the way we recorded the video, the entire video जो हमारा वो 14 दिन का था 1 से 14 जून, that did not get registered with YouTube completely, जिसकी वजह से we will be doing the same record one more time. We will let you know when, how, and what are the technicalities. But unfortunately, that particular video was, all thanks to YouTube, or I would say Google. We had an escalation for about almost a month. Recently, हमें पता चला था उनसे when they finally responded back with a kind of an apology as well as an email that this is what has happened. So हम लोग उसको दोबारा करना पड़ेगा और हम करेंगे. We are here for Sushant. We will get it done. But unfortunately, there was some issue with that, and it did not get registered with YouTube. So वो भी मैं क्लियर कर देना चाहता था. बात बहुत सारे लोग पूछने आ रहे थे कि what is the status. मैंने ट्विटर पे भी एक दो लोगों को जवाब दिया था, but I really wanted to do this as a session as well. So this is the current status. It's not that it did not get. गिनीज को भी अभी अपडेट देना है, अभी तक उनको भी अपडेट हमने नहीं दिया because they are also waiting. So I'm gonna definitely tell them that this time around, इस बार से सिर्फ इतना जरूर हुआ है कि उन 14 दिनों में जो मंथन हुआ है, we've got to know who the real warriors are for Sushant, who are standing for Sushant. So अब हम Hmm. बहुत ही Right. लिमिटेड लोगों के साथ मिलके उस एक अचीवमेंट को जरूर करेंगे फॉर सुशांत. We will definitely follow all the protocols again. We will try to get the approval again. Hopefully this existing approval will stick or stay, but at the same time we will definitely. Hello Pradeep bhai, kaise hain aap? And yes, we will do it. We will make sure the right people this time are connected and they do this one for sure. So yes, we will do it for Sushant as always. That's a Or- great news, Varun. yeah. I wish you all the best and the team. Yes, और जितने absolutely. भी सब लोग करेंगे मिलके. दुबई तमेज़ान जितने भी हमारे वॉरियर्स हैं. करेक्ट. और एक चीज मैं और जरूर बताऊंगा बिफोर आई लेट जूडी स्पीक. आज हो चुकी है, आई थिंक इंडिया में 6th हो गई है मेरे ख्याल से. यस, इंडिया में 6th हो चुकी है. सो गाइज, इन अनदर 4 days, आई डोंट नो इफ दिस गाय इज ऑन द लाइव स्ट्रीम और नॉट, बट 4 दिनों में दुबई तमिजान और तमिलियन जैसे वो बोलते हैं, यश का बर्थडे है. सो जस्ट गिविंग यू एन एडवांस नोटिस, इन अबाउट 4 days we'll be celebrating Yash's birthday as well. बहुत सारे बर्थडे आ चुके हैं, बहुत ही सारे इस बार तो हुआ है. यस, इंडिया में 5th चल रही है, सॉरी. अभी 5 दिन और है. जय श्री राम शरण जी. So yes, we will be celebrating his birthday as well. जुलाई में बहुत बहुत सारे birthdays, एरे का birthday था, and then रुद्र का, मेरा निकला, प्रशांत का.
सुप्रिया एंड मेनी मोर, मैं देख के हैरान था कि एक के बाद एक के बाद एक कैसे कितने सारे बर्थडेज इकट्ठे आए हैं। एंड नाउ वी हैव, एंड कविता जी का भी बर्थडे आ रहा है, सो बहुत सारे बर्थडेज हैं। लेट्स आल्सो कीप ऑन सेलिब्रेटिंग, बिकॉज व्हाट आई गॉट टू नो अबाउट सुशांत वाज, सुशांत को बर्थडेज और दीज बर्थडे केक्स एंड छोटी छोटी सेलिब्रेशन बहुत अच्छी लगती थी। वो हर एक का बहुत ही यू नो अच्छे से वो सेलिब्रेट करते थे। सो आई एम रियली रियली हैप्पी कि हम भी कुछ ऐसा कर पाते हैं लोगों के साथ मिलके, और लोग फैमिली के साथ स्पेंड कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कोविड के चक्कर में दिस गेट टुगेदर्स एंड ऑल दैट स्टफ इज a rare thing now. But let's all keep everybody in their minds and in their hearts during these special days. So all right, Judy, what do you want to say today? And sabse pehle, hello, welcome. You're mute. Yeah, hi Varun, Hello. and hello everyone. Um, I I'll just talk a little off topic because I'm not talking. I don't want to talk about. I don't have anything to add about Ria or whatever your the session is going on. Sure. But I would definitely like to talk about Sushant. I joined this movement as many who say that we were never Sushant's fan, never watched any of his movies. Similar, I'm also one of those persons. But somewhere down the road, when Republic started to um, give news about Sushant, and I got caught up in that. Then suddenly everything went off with Republic for the reasons we all know. And then the YouTubers picked up the moment and kept it going, you know. And I'm really grateful that there are um, m- many, I wouldn't say all, but at least few of them who are really motivated and keeps this movement going on. And one of them is you, Varun. And there is a personally, I like about one or two YouTubers whom I follow, and that's my personal choice. Why I like them, why I like Varun, or why I like Style Rug. Um, I have reasons for that, and so everybody has their own reasons for going around choosing their platforms, hearing that platforms, and that's good enough. But if anybody, I don't know if anybody has ever watched these cult movies over here in the US, and you see these cult movies where people blindly follow the leader, and you'll be surprised that must be many of the people following such cult leaders are mostly educated people coming from really good background. And I always used to wonder, why do these, where is the brains, why do they follow such, why can't they make use of their brains and see what is right and wrong? But they get so brainwashed by such cult leaders that they blindly go with whatever they're saying. And this is exactly what I'm seeing in this Sushant Singh's movement too. Very sad to say this. There are many who are like blindly whitewashing the people, and the people are blindly following that leader, whether that leader is abusing Sushant, whether that leader is um, maligning the family, whether that leader is even body shaming some another fellow YouTuber, or saying inhuman words, or saying some rubbish trash on his platform. Then too there are people following and adoring such people. And I really wonder, what is it that they can't think straight, they can't see that how can you how can one person treat another human being this way? How can you, with the victim, with Sushant is a victim here, and you are maligning him, maligning his family, and still you're adoring that person who's doing that. It's really really heartbreaking to see such, that SSR, some of the SSR warriors blindly following such things. And why then the question arises, why did Sushant
lay down his life for this then. He could have just turned a blind eye, to all the rubbish and trash which is happening in Bollywood, and just go on with his life and followed his dreams and made a big name. He had so much potential going on with him, and he could do anything. He could have just said, screw everything, and I will just get my victories and go ahead with it. But he did not do that. He laid down his life for something, and probably he has laid down that foundation for us. And what we are doing is, instead of building on that foundation, we are destroying it. Even what he has laid, we are building our palaces on his grave. So I wonder, what's the difference between us and that Ria or that Patani or anything? They did it for money too. Here, some others are doing it for money, for fame, for whatever things. Why do we sit and malign Ria and Patani and all these people when we are also in the same boat? So the question arises, like, honestly, keep your hands on your heart, open your eyes, open your brains, and see who you are following, what that person is talking, and then follow that person. Uh, Whether you want to follow that person, or whether you want to follow the preachings of that person or the words of that person, think. We are in the 21st century, and I feel like we are behaving like as if we are from some 18th or 17th century people, like that, where we don't know anything. It's shocking to see what is happening, when you open. I joined Twitter, this Insta. I was never on any of these social media thing. I just joined all this just for Sushant. And it's really shocking. It's really sad to see where things are going on. Forget getting justice also for Sushant. Whether we will even go there to that point, I don't know, with what is happening. And whatever these, as I think so, Advocate Sharanji also has mentioned that, look at that stuff, whether it's the diaries or whether it's the audio tapes. You all analyze, you have your brains, use it. If you feel that it's right, fine. If it's not right, leave it. But bottom line is, if any of these evidences are going to be an advantage in solving Sushant's case, then why not? Why 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 do we want to hamper or damper anything? If the legal authorities find that these things are going to help to solve Sushant's case, then why not? Why do we have to? Yeah, fine, you question or you want to do that, but don't sit to disrupt the movement, disrupt the evidence, disrupt, brainwash the people by saying that this is wrong, that is. You have something of your own, fine, keep it. You analyze it, you think that, okay, it's not right, I don't want to agree with it. That's okay. I've never seen Varun saying that, oh, that this is wrong, the diaries are wrong, the audio is wrong. I've never ever heard him do that. He has his own opinions, and he has kept it to himself, and he said, you decide whether you want to go with it or no. But bottom line is, if anything is going to help get the murderers to the gallows, why are you, why are you stopping that thing to happen? If everybody wants the same end, that we want to see that Sushant gets justice, Sushant's the criminals involved in Sushant's case reach the gallows, then why are these hurdles being put forward? That's my only question. And Yeah, if you all really love Sushant, and if you all feel that he has done this thing for each one of us, then honestly, you all will think twice before your actions, what you all do to each other. That's all I have to say, Varun. Thank you right. so much. Thank you, Judy. Even though I didn't want to mention it, but the moment I read your messages, um, even though we were supposed to do Ria, right, we had to get this out. Not only you, there were many more who are really, really, angry, upset. They're so frustrated with all the nonsense that is going around. Uh, Literal sense में जैसे I use the word मजाक बना के रखा हुआ है, literal sense में मजाक चल रहा है इस time पे.
this has become like a source of entertainment कि चलो आज कोई Google करते हैं, let's see what is the other, thing, hot topic, let's try to mix it with Sushant's case, and let's try to make a breaking, and some kind of new narrative. That's really sad. अगर अगर कुछ नहीं है मत करो यार. But जो लोग literally, I've talked to so many people who say, my son, I'm really worried for my son. I'm really worried for my family member, my brother who wants to do this, who wants to go there and be something. I mean, we all are fighting to make everything clean. The system, we want to fix it. There is so much Mhm. good. But at this point of time, these guys are even spoiling that, and imagine family तक को नहीं छोड़ रहे तो और किसको छोड़ेंगे? Who are you, me, and anybody? They are not even sparing the family, and that is even more shameful. So I understand your frustration, but I would love for you to be here and hear out. I see two more people, Sonal as well, and let's hear everyone out. And I would really like everyone to kind of give some kind of words of wisdom for each of us, and including Judy, who definitely is one of those people who just like Saloni ji as well, and Girija ji, you all get very very emotional, and as well as very very much impacted by all this nonsense that's happening. So Sonal, you want to say something? Yeah, just before Sonal says sorry, Varun, I just Yeah, want to say one thing. I'm nobody. I'm just a common person. I'm just a wife or mother. That's the thing. I'm not here for name, fame. I'm not here to, you know, to get something on Varun's platform or on Style's platform. But I like something. I like to hear. I like Varun for a specific reason. I like Style for a specific reason. And these are two platforms which I really listen to. And I, whatever equations Varun might have with any other YouTuber. I don't care. I don't care what Style has equations with Varun. Here we are not here to become friends or to build friendship. We are here for a certain reason. We are here to see that whatever small contribution we can do can help Sushant get his justice. We don't know whether it will happen in 2 months, 6 months, 1 year. We don't know. We don't know who's going to live today or who's going to not be there tomorrow. We don't know even that, but all we can do is be kind to each other, be human to each other, respect each other, and just follow some things, some ideologies which Sushant has laid down for us, and just go with that. I don't think so. That's a big thing to ask from another fellow human being. correct. I agree. I 100% agree. And I love, I think Vinita also came here to say something, but let me just go to Sonal first. Sonal, please go ahead. Hi Varun, hi everyone else. I came here to say two things. One is building up on what Judy is saying on similar thoughts. Um, a lot has happened between so many channels and this and that. We all came with a certain intention, and then things became like different. And as we grew throughout the year, I think things became quite messy actually, and it is bothering a lot of people. I'm not saying it's bothering on this channel or this channel's viewers. I'm sure it's bothering in different ways to different people. And rightfully so, a lot of people want to gain a lot of followers, get more views. That's okay. They're doing the putting in the work. They get that. But I think the secret sauce to all of that is to be authentic, and I think stay focused on what we are doing. What are we bringing to the table today? Be it about Ria, be it about Sandeep Singh, be it about anything that we know in this particular case, if we are talking about this, right? And I think that is the secret sauce, and that is what will make the channel, each and every one. And I wish success to all of them. So there is a lot of kind of lot of messes going on, but I think if there's this moment we call ceasefire, and we just kind of start focusing on what we are bringing to the table, I think that would make a huge and tremendous difference. Not just that, that will make Sushant happy, and that is everyone's goal. So I think we should do that. I know it's a very idealistic thing that I'm talking about, but it's not that difficult to do.
It's just one individual decision that, okay, starting today, this is what I'm gonna do. That's all it takes, right? So that I want to say. And before I forget, I also want to say this, like whatever I say on this screen, or whatever I type in this chat, or whatever I type in chat, if I go to some other channel, it is not Varun's responsibility. I am my own individual person, and I do what I feel like, or type or write or say what I feel like. So Varun is not responsible if I said something wrong or anything like that. So that. And second, one thought I want to leave with is, a lot of these are kind of dull days where nothing's going on with the agencies, and we are just waiting. And I thought of something like simple but beautiful. Like every single day, as I started this yesterday actually, and I want to continue this on. Every single day, I will think of one of Sushant's qualities and just honor that, right? So, say for example, my today's tweet reads, "Today I choose to honor its SSR's strength of character." And then just a simple hashtag justice for Sushant Singh Rajput. And we can fight this battle by putting others down, or we can fight this battle with love and let the world see how much Sushant is loved. So this is a simple thing. Even if I come on the channel, I will start with, or I will add this one liner about Sushant. One quality: his love for books, his respect for people, his grit, his hard work, his intelligence, his love for life, everything. And each and every day I'll honor that one quality, and I'll try to learn, because I think in 1 year Sushant has given all of us so much. We have grown so much by knowing Sushant, and so I think we owe it to him. And so this is kind of my thought process. Beautiful thought process, beautiful, and I'm sure not only Judy, a lot of other people also kind of resonate with what you said, and I think that's how we should all be. What Judy also said was, absolutely right, that uh, my ideology, my thought process might not align with another YouTuber, and it doesn't have to, and there is no guarantee it will ever be like that. But at the same time, जो वो कर रहे हैं, let them do what they want to do. If they're doing something wrong, yes, there is a point where I will definitely jump in. I will not stop. Simply because we are here for the movement to go in the right direction. अगर कोई इसको गलत करेगा, we will all stand. Just because I have a YouTube channel on my name doesn't mean that I cannot speak against it. That doesn't mean कि मेरा कोई YouTuber का कोई competition चल रहा है उसके साथ. It is because I am as much of an SSR warrior as the other person is. So I also have that freedom of speech, freedom to express myself. Yes, sometimes, occasionally, I would say, I stop myself. Okay? Sometimes I have to be the neutral guy, and I cannot be, bossy on my own platform. That either it's my way or highway. That's not how I will run this platform. It is for people to kind of take this platform forward कि वो किस तरह से क्या क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं. And I am being very open, transparent to not only like people who I meet here on the chat, but there are few people who I talk to offline as well. I'll be very honest about it, कि whether we should do it or not. ऐसे भी questions मैं पूछता हूँ. पहले नहीं पूछता था because I was just building it up. Now I have a kind of a moral responsibility. But अगर मेरे से ये expect किया जाएगा कि यार आज सोनल ये बोल के चली गई, या आज कृष्णा ये करके चला गया चैट पे, या कहीं पर कुछ बोल गया किसी के लिए, that is their own personal perspective. Whatever they want to say, I don't have a control. I don't even know where Sonal is. I don't know where Krishna lives. I don't know who Judy is. I mean, not literal sense mein, but we meet here, we know each other through that social media platform. So but putting everything on a person or the platform means nothing. That is a moot point, and people are just maligning without any reason. There are certain things which are happening which have been brought to my attention as well, but un cheezon ko I am ignoring them because those people and those topics, they have no value, because we are not here for me, I, his, her. We are here only for Sushant. अब सुशांत से रिलेटेड आप कुछ करो, फिर देखो कि कैसे मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, and then I'll also give you a response. You want to talk about me, my platform, I will
give a damn about it. You can do whatever you want to do. Indirectly, you're just giving publicity, and more people will come and see, okay, who the hell is Varun? What is he talking about? Let's go and watch. So thanks for doing that. Continue doing that. I encourage you to do it more. Pick up sentences, pick up dialogues or lines from the show. And I'm not going to take names, but somebody said, even a statement, a small statement that we make or I make on this platform, they will make a 2 hour show on that. So if this is how important I am for these guys, let them be wasting their time, because we really don't need them for Sushant. They're totally useless. But more importantly for Sushant, I can only say, okay, what Sonal you just mentioned, very simple. Nothing has happened, Dheeraj. Something happened again. No, nothing has happened. The only thing that has happened is this is an open mic session. A lot of people wanted to talk, and that's what they are doing. And the candid chat that we normally have. So what Sonal Varun, mentioned, I just want to say one more thing. Sorry to interrupt. please. Uh, See, you run this channel. This is your platform. Though you welcome everybody to come and speak their mind, say whatever you want. But each person coming to this platform is responsible enough. They are responsible, matured enough, and we all come with sort of a baggage. Like we have been stressed out. We are tired. We have but Varun's platform or any platform you go is not a dumping ground. You can't go there and dump your personal agendas on that. You speak. You're there. That platform has been there for Sushant Singh's movement, for justice for Sushant Singh. So speak. If you have something to contribute for Sushant Singh, do that. And if Varun is contributing or anybody else is contributing, appreciate that. In between, there were some things like why was Varun approached to send those audio tapes to the sisters? Why Varun only? But the Exactly. point is not Varun. But the point is that if that evidence or so-called evidence reached the authorities or reached the sisters, and if that thing is going to help Sushant Singh's case, then why not? Whether it went through Varun or any Tom, Dick, and Harry, who's concerned? Who's bothered? Exactly. Uh, the point is, if it is helping Sushant Singh's case, that should be seen. But but the thing is being thrown out. Oh, why Varun only was chosen one? Why that one was only chosen one? Why the heck? Why? What is the problem with who is chosen and who is not chosen? Is that so that oh you're not getting the limelight, so you're worried that somebody else is getting it? You want to be the connection or something. So then where does it come that you're fighting for justice for Sushant? If that's all you want, if you want name and fame, then say that I'm not here for Sushant Singh. I want my own things. I want my own channel running. I want my something. Fine. Everybody wants name, fame, money in life. That's okay. But then don't do it with the label of Sushant Singh. That's Yeah, the point. that's the point. Sushant Singh has done enough for each one of us. It's our time now to give back and do something in our capacity for him. Yeah. All right. I'm gonna move on. NY, please. I apologize. I'm again forgetting your name. That's You mentioned it last time. that's okay. Hi, Varun. My name is Aarti. Sorry, Aarti. Aarti. Okay, Yes, I know. yes. I try to remember. So Yes, so Aarti, good to please go see ahead. you. So good So to good see to you, see Varun. I want to really say to you that one thing I really appreciate about you is that you have never spoken against Sushant's family, and I'm not here to talk about other YouTubers. I mean, everyone has their own reason for what they do. लेकिन आपकी ये क्वालिटी ये एक बात जिस पे आप मतलब you don't break that principle और वो चीज़ बहुत I think is quite nice because मैं जब भी सोचती हूँ कि what the sisters and father की तो शक्ल देख के ही मुझे रोना आता है कि मैंने भी how they must feel और वो कुछ भी नहीं बोल रही हैं और वो अगर सुनती हैं या कोई उनसे कहता है कि देखें आपके YouTube में वो लोग ऐसे कह रहे हैं, I mean how they must feel, कितना दुख होगा, must be heartbreaking. So I really appreciate that about you, and I won't even talk about other YouTubers.
But one thing, the other thing I wanted to also say to you, Varun, is आपका जो कल का जो session था ना on that whether Ria was actually Sushant's girlfriend or not, I thought that was such a good session because quite frankly मैंने कभी उस perspective से देखा नहीं और आपने जो वो footage दिखाई थी of her interview from April, तो 2 महीने बाद ही वो कह रही हैं, I thought that is like really quite interesting कि अगर वो वाकई में girlfriend नहीं थी and she was just some person that he was being kind to, because Sushant was a very kind friend guy. तो और वो मतलब सारा कुछ not only planted, I mean अपना मकसद करने वो आई थी life में, I mean in Sushant's life, and she did that and then she left, and I think that was very interesting. And lastly, I don't have very much to say, but what I wanted to also say to you, Varun, आपके जो back to basics जो sessions होते हैं ना, they are fantastic. I really love the analysis that you Thank do. You bring different aspects, and you bring the facts जो हैं social media में और उनकी analysis करना. I think that's really really nice, and I hope that you continue to do that, because वही content है. Quite frankly, YouTubers के बारे में बात is a bit boring also. No, ये I'll जो tell you. Yeah, even though I would appreciate whatever you said, I really appreciate that, but at the same time, all these little bit of things, we've all missed them. We all have right, been following, we all have been watching it. Even I'm on the same board. अब मैं देखता हूँ and I realize, why the hell did I miss this? Why did I not observe certain things? These interviews, right? Specifically certain dates really make hell yeah, of a difference in clarifying. Now, ये जो tweets का session जो चल रहा है, all credit goes to obviously Shahid Sir, who has documented it so beautifully. There are still about 30 some odd tweets, and the story is pending, which we'll do tomorrow. But one thing that came out of that very clearly was, two things very strongly. One, no matter what anybody says, Sushant was really close to the family. ये जो फालतू की ये nonsense चलती है, that family was involved and family was scared, family was this, family was not taking care of Sushant. ऐसा कुछ नहीं था. There were certain things that happened. All the people who were planted, how he was moved to Mount Blanc, how everybody who he being a movie star, forget being a superstar, usko bhi chhodte hain. Being a movie star, not having a single uh, what do you call, a bodyguard with him at his home, is absolutely absurd, क्योंकि हर कोई, एवरी सिंगल मूवी एक्टर भी मैं कहूंगा, छोटा से छोटा भी होगा, उसके पास भी एक बॉडीगार्ड होता है, एक बंदा होता है जिसको वो who takes care of. यहाँ पर look at the kind of people who were with him. These were all वो क्या बोलते हैं इनको, एक मुंबई लैंग्वेज में पता नहीं वर्ड होता है शायद, छपड़ी या कुछ ऐसे, कि हाँ, exactly, right. लिटरली पीपल हु कुड नॉट इवन सेव. इनसे ज्यादा स्ट्रांग तो मैं कहता हूँ सुशांत ही है, कि सुशांत ही इनके किसी के थप्पड़ जड़ देता, तो इनका गेम ओवर हो जाता. एंड इमेजिन दैट सेम हाउस में, इतने बड़े घर में रहना विदाउट अ सिक्योरिटी, दैट. एंड द सेकंड थिंग व्हिच वाज वेरी एविडेंट वाज Ria Chakravarti definitely herself has acknowledged she was not a girlfriend. And 2 months, में क्या game change हुई the moment he was dead, and itna public pressure आया that she was forced to write a tweet that I am the girlfriend of Sushant Singh Rajput. That was very very absurd. मतलब बहुत odd feel होता है. So ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं that this particular storyline has brought up even in front of me, and I'm so glad and thankful to people who have asked me to do this, because I also missed this. These tweets were done, I don't know, a couple of months back, and somehow these were all missed. And iske upar Nona Sushant, the individual who's been supposedly very close to, I don't know how, I still have to, she, at least she responded back, and she herself actually responded, not responded back, but she responded when I posted it first time. Okay, please never put Ria as her Sushant's girlfriend.
I've been trying to get hold of her. I'm trying to see, if she can join sometime, even if on audio, or at least record a session. And Nona, if you're again watching, I said it yesterday as well. I said it on the previous session as well. And I'm saying it one more time. Please look at the people who are here for Sushant. And if you really, really, genuinely have been doing so much for Sushant, I think all the SSR warriors really expect this from you. So please come out. Don't have to be, on the camera, but at least with even with your voice, if you can come and share certain things, tell us a little bit more about Sushant, or whatever you know about Ria or their relationship. Please do that. It will be a real, I'll be thankful. A lot of people, a lot of SSR warriors will be grateful to you. So please do that. So thank Yeah, you. Thank Varun, sorry, I just want to, speaking about this Ria thing, आपके सेशन के बारे में के बाद मैं सोचने लगी कि क्या वजह हो सकती है that Sushant then was with Ria. I mean, she wasn't his girlfriend, but why was she around? And the only thing I could come up with is if he felt that he needed to help her. मतलब अगर if she projected somehow to him, इंडस्ट्री में हूँ और महेश भट्ट whatever मेरा advantage दिया गया है, it's possible that that's the reason why he felt protective. And उसके बाद में God knows, I mean, how she was blackmailing. ये बहुत interesting है, and that would be great if you are able to bring Nona, because yeah. it's really very interesting. And please continue the good work you're doing, Varun. Thank you so much Thank you. for having me. Yeah, thanks, Arti. Thank you. All right, Vinita. Sorry it took us a while, but yes, I think you very specifically wanted to say something around Judy as well. So please go ahead. Hey Varun, are you able to hear me? Yes, loud and clear. Oh, it's a shame Sonal dropped off, but it's in almost in continuation of what Judy, the line of thinking that Judy and Sonam were going towards, and I definitely 100% agree with them. The reason I came is actually to maybe take that one step forward. So before I go on to explain that, let me give a rhetorical example. Last year, जब भी COVID broke out in New York specifically, yeah, in fact, United States, okay, and this will definitely resonate with most of us who live here. Do you remember कि जब भी लॉकडाउन का बात हुआ था, तो सबसे पहले लोगों ने क्या किया था? Do you remember? Toilet paper. Exactly. Yeah, toilet paper. They went and bought toilet paper. Right. Now, any क्या बोलते हैं ना, sane person या जिसके पास थोड़ा 2 सेंट का दिमाग है, they are not going to correlate coronavirus to toilet paper. But do you remember how many did? Like, it propagated because इतने लोगों ने किया, then herd mentality बन गया कि मुझे actually toilet paper की अभी जरूरत नहीं है, but वो खत्म हो जाएगा, दूसरे लोग ले रहे हैं, तो let me go and buy also, because then when I need it, I won't have it, because there is a supply and demand mismatch that has happened. तो मैं सोच रही थी, just like Judy and Sonam were introspecting, right, कि what are we doing? मैं भी सोच रही थी कि are we a part of the problem or are we part of the solution? And by we, I mean all of us, including you, Varun. कि हम कर क्या रहे हैं? Like, what are we doing? I don't listen to घंटों talks about ये channel में ये हो रहा है या वो channel में वो हो रहा है. I take a choice of closing the video, frankly. I don't care. That's why. मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है किसके channel पे. Specifically to Sushant के topic पे, I want to know what happened to him. Like, that is where it boils down to. हुआ क्या उसको? And that like, like, it doesn't seem like a suicide. It seems like something happened to him. But if I'm wrong, that okay, मुझे वही दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाया जा रहा है. Okay, let's say for a second कि I'm looking at what is being shown to me, imagery. मेरे सामने वही constantly tape बजते जा रहा है, तो मुझे वही मेरे दिमाग में वही चल रहा है. So tell, like, somebody from the agency, somebody who knows this stuff, right? Tell me what happened to the guy. Like, ऐसे कोई उड़ नहीं जाता है suddenly, you know?
And that's where my interest kind of comes down to again and again, and why I keep coming back uh, to listen in and to this channel, or anywhere. If I have a time, I'll Google it. So for that reason, now going back to what I wanted to kind of put a little bow on this, what Judy and Sonam was saying, other than our own individual choices, what did we learn from the experience, and how do we want to implement it in our own lives? That's separate. That's to each their own. But on your channel, for your platform, uh, instead of talking about somebody else, I have an idea. How about take in your screen, or you want to put a little paper in the back or something, do a left and a right, beach make line bana do, and on the left side call it facts. And facts is not what we think facts are. Facts are facts. And I can see Advocate Sharan is here, he can also attest to it. फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट ये नहीं है कि सुशांत और रिया रिलेशनशिप में थे या नहीं. हु आर वी टू टॉक अबाउट इट? It's to me, it's irrelevant. This is my opinion. People can agree to disagree. But fact is this, that yes, his investigation was botched up. That's a fact. The fact is that a lot of things that should have followed didn't happen protocol wise. That is a fact. Everything else that is noise, that's just sheer noise, can stay on the right side of this chart, and left side may true facts rahenge, which are actually backed up by corroborative evidence bolo, ya fir, it's not just one person saying it, it's 10 people saying it, something like that. And it will help clear the muck, it will help cut the clutter, and maybe refocus the discussion to where it needs to be. And perhaps maybe we don't look so crazy to some other people then, कि ये लोग कर क्या रहे हैं, इनको कुछ और काम नहीं है, यही बैठ के दिन भर ढिंडोरा पीटना. So that's just my sort of 2 cents on this. Again, no judgment, and I have nothing personal against anyone. You know that, Varun. Right. But this is sort of my way of balancing things out. Got it. And I think another thing, before I say anything else, I think when Judy was saying something, you wanted to add to what it was exactly this, and I mean, to Judy's point about why is it that, to her question, like, why is it that this has become what it has become, and part of the answer is ourself, we, us, everybody. That's what I'm trying to say. कि ये हम सब हैं इस आवाज में. We are not, if it is a good voice, we are all part of it. If it's a bad noise, we are also equally a part of it. The minute somebody, like, जैसे ही किसी का कुछ सुनने में आया कि somebody said some बकवास कि कि oh, Sushant is alive, the minute हमारे दिमाग ने ये डायरेक्शन ले लिया कि let's close this channel, let's go and see वहां पर क्या बातें हो रही है, that's it, that we are a part of the problem then. Right. No, absolutely. I'm sorry I got a little distracted, and I'll take Sharanji as well. Before that, Amit Kumar, मुझे आपके इस मैसेज का मतलब नहीं समझ आया. Please explain. Ranu Singh has video of murder. Contact him. आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? Who is Ranu Singh? Can you please elaborate, and can you share what you want to say? इस तरह के messages chat में लिखना और बात करना, it gives a lot of different meanings and a lot of different things. So please clarify. And if you have nothing, then please, let's not put anything like that in the chat. Varun, right. I'll just take your leave now. Is sure. that okay? Thank you, Vinita. I always appreciate your inputs. And namaste, Sharanji. So carry on. And as always, Varun, thank you for giving me a place on your platform. Thank you. Thank you, Judy. All the best. Take care of yourself. Yeah, bye. Sure. Thank you so much. Bye. Sure. All right, Amit, please, you have my number. You have the details. I show screen pe bhi hai. If you want to call me, if you want to reach out to me, I will love to speak to you. जो भी आपके पास बात है, अगर कुछ है ऐसा, this has to go to the agencies, but let's talk if possible. All right, Sharanji, please. पहले तो जय श्री राम.
Jai Shri Ram. Give me 2 minutes. शरण जी, Give me 2 जय minutes. श्री राम शरण जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। So yes, while Sharanji is coming, मैं जरूर इतना कहूँगा, what Vinita said, what Sonal said, I completely agree, and I think partly we all are responsible and can be blamed as well. कुछ चीजें होती हैं, कई बार हम flow में निकल जाते हैं. That's why थोड़ा सा change किया था perspective, थोड़ा सा but eventually we end up getting back to the same point somehow. Talking about people, talking about certain things, eventually will happen because I think it's human nature as well. तो हम भी वहाँ बात करने आ जाते हैं. But I think one point which I really agree with Vinita is we should stay focused about what are the facts, what are the things that we really want to talk, we really want to continue talking about, that can help the case, not these things. ये सारी चीजें तो obviously केस को कोई हेल्प करने वाली है नहीं, किसी भी तरह से कौन क्या यूट्यूबर दिखा रहा है, क्या थ्योरी. बट one thing which I kind of not agree was, uh, if we don't talk about certain things and certain people at the right time, ये लोग बंद नहीं होंगे, ये लोग चुप नहीं होंगे. ये नहीं है कि हमारे बोलने से बंद हो जाएंगे, बट एटलीस्ट कुछ लोग जो ब्रेन वॉश हो जाते हैं या बहुत अच्छे हैं ब्रेन वॉश करने में, definitely I would love trying to quash those theories. Sure, Himaji, no worries. I was trying to see if Himaji wants to join. We'll do something, Himaji, very soon. Let's do a complete kind of round around this case, and do some जो back to basics, जो हम sessions करते थे, इकट्ठे भी किए हमने. Let's do something together from the start till the end, and maybe I will call you, we'll chat about it, and let's do something around all the facts like what Vinita said. Before I take Sharanji now, I think Sharanji जब भी आएंगे, सुवर्णा जी एक बार फिर से वेलकम, नमस्कार, कैसी हैं आप? या नमस्कार, कैन यू हियर मी? लाउड एंड क्लियर. या जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम. जय श्री राम. वरुण भाई, मुझे एक बात आपको बताना है. ये जो बंदी है, ये रिया चक्रवर्ती, ये खुद को बोलती है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ. ओके, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हो तो आपने इतना बड़ा लॉयर हायर कैसे किया? आपको अपॉइंटमेंट मिला कैसे? हम जैसे आम इंसान, मिडिल क्लास वाले, वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ सतीश माने शिंदे. और अगर हमको उनका फीस देना होगा तो हमको हमारा घर बेचना पड़ेगा. मतलब वो इतना एक्सपेंसिव लॉयर है. और उसका एक दिन का फीस, उनका जो फीस है 10 से 15 लाख का उनका फीस है. सो ये बंदी, उसके पिताजी भी बोल रहे हैं हम लोग मिडिल क्लास वाले, हमको मत सताओ. अरे पर तुमको ये लॉयर मिला किसने दिया? और कौन तुम्हारी फीस भर रहा है? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन. वी वांट टू नो हु इज पेइंग योर फीस एंड हाउ डिड यू मैनेज दिस लॉयर? और इतना जल्दी तुमको अपॉइंटमेंट कैसे मिला? आप क्या कहोगे वरुण जी? ये तो हमने इसके बारे में 2-3 सेशन पहले भी किए थे. बिल्कुल सही कहा आपने. आप घर बेचने की बात कर रही हैं. मैं तो कहता हूँ मेरे जैसे को अगर ऐसा लॉयर लेना भी इनको सर्विस लेनी पड़ी तो इसके लिए तो मेरे को अपॉइंटमेंट ही शायद ना मिले सालों साल की, पहली बात. एग्जैक्टली. उसके बाद अगर अपॉइंटमेंट मिल भी जाए, मैं तो इनकी एक कोर्ट की हेयरिंग में ही मेरा हो जाए कि मैं तो आई कैन नॉट इवन अफोर्ड दिस काइंड ऑफ अ सर्विस, तो मैं तो इनको करूंगा ही नहीं. एग्जैक्टली. तभी मैंने कल जब सेशन किया था, राइट, ये ऑल थैंक्स टू अगेन दीस ट्वीट्स जो मैं पढ़ पा रहा हूँ, इसके अंदर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है एक चीज. वो जो स्टोरी लाइन को अगर मैं समझूं ध्यान से, तो एक चीज बहुत क्लियर दिखती जा रही है कि जब रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर में प्लॉट हुई, उनको बहुत क्लियरली किसी वजह से वहां भेजा गया था विद अ पैकेज कि यू नो व्हाट, ये चीज तेरे पैकेज में आती है, तेरे को पैसे मिलेंगे, तेरे को गारंटी मिलेगी कि तेरे को इस चीज से बाहर निकाला जाएगा जब भी कुछ होगा. यू जस्ट प्ले योर रोल, यू एक्ट लाइक अ सर्टेन पर्सन and you'd get this work done for us, we will take care of the rest. Absolutely. ये जो हो रहा है with all the advocates and all the support from media, ये सब उस पैकेज का एक पार्ट लग रहा है जो कि अब एग्जीक्यूट हो रहा है और कुछ नहीं है. अदरवाइज कमिंग डैड एन आर्मी, वो डॉक्टर, वाइफ अ हाउसवाइफ, बेटी अभी इतनी बड़ी कोई फिल्म स्टार नहीं बनी, वो फैमिली जो कि कंपनी को रजिस्टर करने के लिए 50,000 रुपए भी नहीं अफोर्ड कर सकते थे, वो भी सुशांत
ने पे किए जो, वो जी। लोग अब इस तरह के एडवोकेट को कैसे अफोर्ड कर पा रहे हैं, ये तो भाई वही जानते हैं। और ये ये वो और कैसे उसने कहा था ना इन वन ऑफ हिज इंटरव्यू कि मैं मेरा इंस्टॉलमेंट में भर रही हूँ कुछ 17,000। वो अगर उतना अफोर्ड नहीं कर सकती तो तुम 10 से 15 लाख फीस एग्जैक्टली, कैसे पे कर सकती है? और वो पर डे फीस है उनकी। ये करेक्ट, बहुत बड़ा, इट इज वेरी सस्पिशियस, लाइक ये कुछ तो झोल है। या और इसको कोई तो बड़ा आदमी बैकअप कर रहा है, कोई तो फाइनेंशियली उसको मतलब उसको फाइनेंशियली उसको सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से वो शीज क्या कहते हैं, शी इज हैप्पी, शी इज सेटिस्फाइड एंड शी नोज कि मैं इससे बाहर आने वाली हूँ। उसको गारंटी है, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, गारंटी तो देखो, जिस तरह से अगर पिठानी की शक्ल देखें, वो अपनी हाँ। शादी या अदरवाइज जब वो जेल से या कोर्ट से बाहर निकलता है और उसकी फोटोग्राफ्स आती हैं, लुक एट द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इवन ही हैज, यस। भगवान ना करे ऐसा मेरे साथ या किसी एक नॉर्मल बंदे के साथ हो। मैं बता रहा हूँ, इतनी हालत खराब होगी कि समझ नहीं आ रहा होगा कि यार हम क्या करेंगे, हम बचेंगे कैसे। दीज गाइज आर ओवर कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं कहूंगा। दीज गाइज एब्सोल्युटली। वेरी वेरी लाइक सब्जियां लेने जा रही हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, किसी सैलून जा रही हैं और कह रही है कि मैं एक जगह खड़ी हो जाती हूँ, वहां से फोटो ले लो। आई हम्म। स्वेयर टू गॉड, जब मैंने उसके मुंह से वो डायलॉग सुना कि मैं एक हम्म। जगह खड़ी हो जाती हूँ और आप वहां से फोटोज ले लो, शी इज लाइक, देयर इज नो रिमोर्स फर्स्ट। हम्म। सेकंड, शी इज ओवर कॉन्फिडेंट कि व्हाट, फोटोज तो लेंगे ही, मैं तो सेलिब्रिटी हुई हूँ, तो मैं साइड पे हम्म। खड़ी हो जाती हूँ। और देयर वाज हम्म। अ दिस गाय, एक एक वहां पर फिजिकली चैलेंज बंदा वहां बैठा हुआ था ऑन हिज व्हील चेयर। एंड रिया चक्रवर्ती उसके पास जाती है, शायद उस बंदे ने शायद रिक्वेस्ट किया कि एक फोटो ले ले। हम्म। तो उसने फोन निकाला, कुछ कुछ तो करा, तो उसने कहा कि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बाहर आऊंगी, दोबारा करें। आई मीन द काइंड ऑफ इंटरेक्शन, द काइंड ऑफ कन्वर्सेशन शी इज हैविंग, उसको ऐसे लग रहा है कि कोई वो सेलिब्रिटी बहुत बड़ी है और लोग जी। मरे जा रहे हैं उसके साथ फोटोग्राफ्स खिंचवाने के लिए एंड ऑल दैट, और वो उसी हाँ। तरह से अपने स्टारी वो दिखा रही है। एंड हम्म। these I am very shocked at these photographers. I know it's their bread and butter, but that really doesn't make any sense. जिस तरह से ये मर रहे हैं, रिया चक्रवर्ती की फोटोग्राफ्स, यू नो सब्जी लेते हुए, सैलून जाते हुए, क्या रहा है? I mean, हम्म। these guys also should boycott, but unfortunately पूरा का पूरा कबाल लगा हुआ है इसको सपोर्ट करने में कि कुछ नहीं कर सकते हम लोग। That's the जी problem. जी। वही तो, नहीं वही यही पूछना था कि ये कैसे अफोर्ड कर सकती है, इतनी गरीब बंदी है। हाँ, हम जैसे मिडिल क्लास वाले अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये कैसे अफोर्ड कर सकती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक Exactly. है, कुछ नहीं, सीबीआई शुड लुक इनटू दिस मैटर ऑल्सो कि इसको फाइनेंस कौन कर रहा है, और इतना पैसा उसको कहाँ से आ रहा है? ये सुशांत का चुराया हुआ पैसा है Yeah. या कोई और उसको दे रहा है? Yeah, absolutely. I now believe, चुराया हुआ था जो था वो तो खा लिया। अब तो हाँ। ये कहीं और से आ रहा है। वो तो और बहुत डेफिनेटली। सारे बहुत सारे पैसे थे, कम नहीं थे, कम से कम 40-50 करोड़ से तो पैसा रहेगा उसके पास बैंक में, या कहाँ तो रखा होगा उसने। करेक्ट, करेक्ट। वो ये हाँ। वही लड़की है जो सुशांत की डेथ के बाद घर ढूंढ रही थी सड़कों पे अपने भाई के साथ, जो जी। 50 से 60 हजार रेंट नहीं अफोर्ड कर पा रही थी। उसके पास हम्म। इतना पैसा है कि इतना बड़ा केस हैंडल करवा रही है। सो या, एब्सोल्युटली हाँ। कुछ तो यस। करना चाहिए। ओके, चलो, सो थैंक यू। थैंक यू सरना जी। मैं यस। इसको एक विश करता हूँ, जैसे कि ये जो बॉम्बे के कमिश्नर थे ना, हाँ, क्या नाम था इसका, परमी। शर्मबीर बोलते हैं हम उसको। हाँ, तो ये शर्मबीर का आपने देखा केस, बेशर्मी से उसको बाहर निकाला गया। ऐसे ही कुछ दिनों में या कुछ महीनों के अंदर आप देखेंगे सतीश मानसिंह जैसे जो वकील जो होते हैं ना, इनका भी पर्दाफाश होगा। यार इनका पता क्या है, इवन दो आई वुड से होना चाहिए। ये जो होगा। एडवोकेट्स हैं, ये जिस तरह के एडवोकेट्स हैं, राइट, दे प्ले द कार्ड्स वेरी वेल। सो एनीवेज, हमारे साथ फिर से शरण जी आए हैं एक बार फिर से। जय श्री राम शरण जी। जय श्री राम वरुण जी। जय श्री राम। जय हाँ श्री जी, राम शरण जी। थैंक यू फॉर कमिंग बैक। जय श्री राम भाई। जय श्री राम। बोलिए सर, बोलिए। हाँ जी, पहले तो मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा कि एक आपके लिए कोई क्वेश्चन आया था, बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन था, पीआईएल। जो मैं फ्लैश करना चाहूंगा। बट ओवरऑल शरण जी, एक आज हमने ये ओपन माइक इसलिए भी रखा था, फिर से वही थोड़ा सा थोड़े थोड़े दिनों बाद होता है, जैसे
लोग डिमोटिवेट होना शुरू होते हैं, थोड़ा-सा फ़ील करते हैं कि कहाँ जा रहा है, एंड केस का क्या होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो उससे रिलेटेड डेफ़िनेटली आप एंड में ज़रूर कुछ बोलें। बट सोनल, इफ यू कुड प्लीज़ ओके, वीपी प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन। ओके, वीपी ने क्वेश्चन पूछा था, मुझे लगा सोनल ने पूछा है, सो लेट मी जस्ट फ्लैश दैट क्वेश्चन शरद जी आपके लिए। If we can file, okay, we can file a PIL for discovery. Discovery. मेरे ख्याल से जो सतीश मान शिंदे की उसके बारे में लिखा है इन्होंने कि क्या हम पीआईएल फाइल करके पता कर सकते हैं कितना पैसा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ऐसा कुछ जानना चाहते हैं शायद। Okay. All right. VP, can you be more specific with your question? If you can, for discovery of what? Okay, how Riaz? Okay, Sharad ji, ये है आपके लिए question. We need to figure out if we can file a PIL. Can we file a PIL for discovery on how Ria is being paid? या रिया ये पैसे कहाँ से पे कर पा रही है to the advocate? Is that possible? No, No. Okay. no. तो कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है, चाहे वो टैक्स की तरफ से हो या किसी ईडी की तरफ से हो, we cannot figure out as outsiders to know the source of money for filing the case and this particular case. नहीं, ये देखिए, ईडी ऑलरेडी काम कर रहा है। ईडी को वो डिस्क्लोज जब करेगा, जब उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, जब उसके ऊपर केस करेगा, जब फाइनल चार्जशीट वगैरह फाइल करेगा, तब वो मालूम होगा। वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और ये सारे चीजें देखिए, जो भी इंडिविजुअल पैसे का हो, प्राइवेसी का बात आता है, टेलीफोन डिस्कशन हो या अपना पैसे का ट्रांजैक्शन हो या बैंक अकाउंट का रिलेटेड हो, सारे हर एक का एक अपना एक इंडिविजुअल ये होता है। उसमें अगर कोई क्राइम में अगर रिलेटेड है तो उसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को पावर है वो सारी चीजें करने में। ईडी को भी पावर है मनी लिंक का रिलेटेड इंक्वायरी करने में, उन्हीं को है फिलहाल। और पब्लिक का कोई इंटरेस्ट लिटिगेशन यहाँ फाइल नहीं हो सकता इस केस में, क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें नहीं है कुछ। Got it. I think वही मैं अभी जैसे बात कर रहा था कृष्णा से कि बहुत सारे ऐसे ये अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एडवोकेट आप भी हैं, मैं आपकी नहीं बात कर रहा, मैं जेनरिक बात कर रहा हूँ। जो कृष्णा ने बोली कि मानिक शिंदे इन सब का भी भांडा फूटना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ, तो मैं सिर्फ यही कह रहा था कि एंड ऑफ द डे advocates definitely know the system in and out. Of course गलती हर किसी से हो सकती है, मैं ये नहीं कहता, but फिर भी there will definitely be everything. The cards are really they play the cards very well is all I can say. तो इसलिए मैं उस तरफ ज्यादा जाना ही नहीं चाहता था। सरिता जी, नारायण नारायण। नारायण नारायण। हाँ जी, तो शरद जी दूसरी बात, अब मैं यहाँ पर इसको ऑब्वियसली कंटिन्यू, अगर मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा बिफोर ऑलमोस्ट मुझे पता ही लगा 2 घंटे होने वाले हैं। एक और जनरल क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत सारे फिर से नैरेटिव्स शुरू हो रहे हैं अराउंड सुशांत। ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट सही है गलत है, और आपने बिल्कुल सही कहा है, एनीथिंग दैट इज इन फेवर ऑफ सुशांत ले लो, जो नहीं है उसको इग्नोर कर दो, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। बट ये नैरेटिव्स के बेसिस पे जैसे मूवी आ रही थी न्याय या कुछ भी आ रहा था, वो तो फैमिली कैन टेक सम काइंड ऑफ एक्शन फॉर श्योर, बट व्हाट अबाउट दीज डिफरेंट थ्योरीज जो सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया या कहीं पर भी कोई अगर फालतू की नैरेटिव्स आने होते शुरू होते हैं, what about that? Can only the family block them? Yeah, can any one of us can file some kind of litigation या किसी तरह का कोई complaint कि कोई fake न्यूज़ फैला रहा है तो उसको रोका जा सकता है as by us also, या सिर्फ फैमिली ही कर सकती है? आपको याद होगा तेजस्वी सूर्या बोल के एक एमपी है बीजेपी का। हाँ जी, बेंगलुरु में है वो, बेंगलुरु कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जीत के आए। इलेक्शन से पहले उनके अगेंस्ट में कुछ ऐसा ही कुछ जो सोशल मीडिया में हो या प्रिंट मीडिया में हो डेरोगेटरी यूज कर रहे हैं। जो सिविल कोर्ट रहता है ना, सीनियर डिवीजन बोलते हैं,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्लेस में रहता है ना, वहां जाके सारे लोगों के 30-40 आप गूगल करके भी अगर देखा ना, आपको मालूम होगा 40-50 लोगों को पार्टी बना के सबके अगेंस्ट में इंजंक्शन लिया था, स्टे ऑर्डर मिला था, कोई पब्लिश नहीं करोगे इसके अगेंस्ट में, ये इसका डिरोगेटरी वगैरह वगैरह। फिर वही आता है कि फैमिली को ही राइट आता है, शरण को उसमें क्या, बाहर के लोगों को उसमें थोड़ा सा स्कोप कम है, वो लोग कर सकते हैं कोर्ट में जाके उसको रिस्ट्रेन कर सकते हैं, नॉट ओनली न्याय और जो भी है सारी चीजें सबके लिए, सबको पार्टी बना के वो इंजंक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। राइट, गॉट इट। या मतलब क्योंकि बेसिकली कोर्ट पूछेगा ना, हाँ, कोर्ट करेक्ट। पूछेगा हु आर यू, व्हाट इज योर इंटरेस्ट। व्हाट इज इंटरेस्ट इंटरेस्टेड पार्टीज रहते हैं ना उसमें, इंटरेस्टेड पार्टीज रहते हैं सारे डैमेजेस में या सिविल सूट में या किसी चीज में, इंटरेस्टेड पार्टी, व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन दैट, दे विल आस्क अस। Got it. No, absolutely. और यू नो बिफोर आई वी डेफिनेटली एंड, और गुरुजी आप भी कुछ शरद जी को कहना चाहते हैं, कुछ कहना आए हैं प्लीज बिफोर आई नहीं आस्क? नहीं 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 नहीं। अच्छा तो आपके बारे में मैं पता नहीं, यू नो गुरु, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कुछ लोगों के बारे में ऑब्वियसली आप चैट पे आप भी पढ़ते ही होगे, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। कभी भी आपको लगे, इफ यू वांट टू क्लैरिफाई समथिंग और यू वांट टू से समथिंग, प्लीज फील फ्री, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद आपको डिफरेंट चैनल्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अरे मैं वो जो आपने कल जो बोला था ना, मोदी को क्लीन चिट नहीं दे सकते, उसे इशू मतलब वही बात, इसलिए वो बोल रहे हैं शायद। पहली बात तो मैं एक बार क्लियर कर दूं, मैंने मोदी या यू नो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बात ही नहीं करी। मैंने एक टाइटल यूज किया था प्राइम मिनिस्टर। जिसने भी वीडियो सुनना है वो दोबारा सुन सकता है कि हम आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर या सीईओ किसी को भी नहीं छोड़ सकते, इज व्हाट आई सेड। किसी ने इसको कुछ भी बनाना है, किसी ने इंडिया, मैं इंडिया में नहीं बैठा हूं, तो यू नो तो मैं हर बार जब भी बात कर रहा हूँ जरूरी नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। और अगर मैं कर भी रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, यार जिसको जो करना है वो करे, बट एट द सेम टाइम इस बार मैं जरूर ये क्लैरिफाई करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे, यूके का भी प्राइम मिनिस्टर होता है, पाकिस्तान का भी प्राइम मिनिस्टर होता है, इंडिया का भी प्राइम मिनिस्टर होता है, और बहुत सारी कंट्रीज का प्राइम मिनिस्टर होता है। सो मैंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बोला और मैं सीईओ बोला, ये दो वर्ड्स यूज किए मैंने, आई नेवर टुक एनीबॉडीज नेम। और फिर भी अगर किसी को कुछ भी लगता है वो तो कर सकता है, एनीवेज वो तो अलग टॉपिक है। बट या मैं सिर्फ चैट का देख रहा था, इसलिए मैंने कहा बता दूं मैं कि बिटवीन टू चैनल्स। ऑलराइट, सो बिफोर वी एंड दिस सेशन, शरण जी एक बार फिर से, यू नो जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, लोग मोटिवेट डिमोटिवेट बार बार होते हैं, ऑफ कोर्स मोटिवेशन के लिए बैठे हैं काफी सारे लोग, डिमोटिवेशन के लिए भी अब बहुत लोग हो चुके हैं। बट एक ये क्वेश्चन फिर से आया विनीता का, आई एम गोना जस्ट पुट दिस क्वेश्चन डायरेक्टली टू यू। Hypothetically speaking, if Disha's family decides to file a FIR that they don't think the daughter jumped off a building, could it change SSR case direction? गुड क्वेश्चन है। दिशा का फैमिली अगर एफआईआर फाइल किया तो उसका सुशांत का केस में डायरेक्शन बदल सकता है क्या, यही है ना? या हाँ जी, या ये देखिए ठीक है, वो सब हाइपोथेटिकल हो गया, ये फाइंड वर्ड्स वो तो हुआ नहीं है। आज के दिन में सब चीजें कनेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को वो सारी चीजें बोलना है। अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं है, अगर होता तो 100% हेल्प होता था, क्योंकि है ना ये विद इन स्पैन ऑफ 7 days और विद इन स्पैन ऑफ 1 month बहुत सारे लोगों का अननेचुरल, सो कॉल्ड अननेचुरल डेथ्स हुए हैं। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुशांत का केस को कनेक्टेड है, वो सारे लोग सुशांत के दोस्त थे या उनकी टीम में काम करते थे, तो वो 100% उसको हेल्प होता था, जरूर होता था। क्योंकि है ना ये जो इंटरेस्टेड पार्टीज है ना उसमें सामने वाला सारे लोग है ना एक जैसे हैं, एक ही है, उनका मोडस ऑपरेंडी भी एक तरह की है, इसलिए 100% वो हेल्प होता था, इसलिए उन लोगों ने मुंह बंद किया ना सबका। करेक्ट। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली, यू नो मुझे याद है इसका ऐसे एक और क्वेश्चन का, हालांकि मैं लीगल, आई एम नॉट एन एडवोकेट, मैं कोई लीगल मेरी एजुकेशन नहीं है, पर मैंने सिर्फ इसका डिफरेंटली थोड़ा सा आंसर ये दिया था शरद जी, एंड आई वुड लव टू बी करेक्टेड। पर मैंने सिर्फ ये उस टाइम पे बोला था एक जगह कि अगर ऐसा कुछ होता, अगर उसकी फैमिली आज भी आती है, सबसे पहले तो यू नो एक एक पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी,
इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो जो एविडेंसेस निकल के आएंगे, उनके बेसिस के ऊपर दे विल फिगर आउट कि कोई कनेक्शन है कि नहीं, एंड देन यस दे विल डेफिनेटली कनेक्ट द टू केसेस। अदरवाइज आपने वो बात सही कही कि यस दे आर रिलेटेड, एज इन दिशा और सुशांत का एक कनेक्शन था, नो डाउट अबाउट इट, बट टिल द टाइम वो जो इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई ऐसे एविडेंसेस बाहर नहीं आते और ये एक स्टैंड अलोन मर्डर केस बनता है, तो उस टाइम पे मे बी सुशांत के केस में शायद वो हेल्प ना हो, बट अदरवाइज जब तक वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, जब तक उसकी पूरी थरो सारे एविडेंसेस कलेक्ट नहीं होते, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि दीज बोथ डेथ्स आर, इवन दो वी फर्मली बिलीव, बट लीगली स्पीकिंग आई थॉट कि वो पहले एविडेंसेस कनेक्ट करने बहुत जरूरी होंगे, उसके बेसिस पे दे विल डू इट फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव। नहीं नहीं, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, मैं सुना नहीं है, आवाज ही ओह नहीं अच्छा, सुना बिल्कुल। अच्छा। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि एक बार कुछ महीनों पहले या या एक सेशन में मैंने सिर्फ इस ऐसे ही क्वेश्चन का एक जवाब दिया था, और मैं आपसे बल्कि वो एक अपना अपने आप को करेक्ट भी करना चाहूंगा। तो मैंने सिर्फ उस टाइम पे ये जवाब दिया था कि सबसे पहले तो अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली पहले इन्वेस्टिगेशन होगी पूरी थॉरो, सारे एविडेंसेस कलेक्ट होंगे, और उन एविडेंसेस के बेसिस पे अगर वो कनेक्शन बनता है, then yes the case will definitely get there will be help for the Sushant murder case या सुशांत के केस के लिए। Otherwise it might end up being an individual murder case जहां पर अगर वो एविडेंसेस ये प्रूव करते हैं कि दिशा का मर्डर हुआ था, then it will be treated as an individual murder case and it might not help सुशांत का केस, but at least दिशा के केस में वो हेल्प करेगा। नहीं, That's what इसमें अभी रिवर्स हो गया। हाँ जी, रिवर्स ये हो गया कि अभी सुशांत का केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला इसका रिलेटेड जितने भी केसेस है आप इसको इन्वेस्टिगेशन करो, तो इसीलिए सीबीआई का दायरे में ये सारे केसेस आ जाते हैं। तो इसीलिए शायद है ना, जहां तक पब्लिक डोमेन में आया है, वो लोग वहां विजिट किए थे, सीबीआई वाले वहां जाके विजिट किए थे दिशा का घर को, राइट? तो हाँ जी। वहां उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, कहाँ तक वो पहुंचा है, वो बोलना मुश्किल है। लेकिन इस केस में वो केस निकल सकता है बाहर। ओके, वो एक एंगल है। अगर वो निकला तो उनका फैमिली मेंबर उसमें बोले या ना बोले, वो तो आएगा ही आएगा, वो केस में आएगा ही आएगा। उसका भी इन्वेस्टिगेशन होगा, उसका भी अलग से एफआईआर फाइल होगा, वो भी सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे। नहीं तो इसमें सारी चीजें वो मर्ज होके उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो एक अलग बात है। और दूसरी बात, उनको ये जो मर्डर का केसेस रहता है उसका कोई लिमिटेशन नहीं रहता, कभी भी कोई भी केस उसको फाइल कर सकता है। उसको आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ये डिले क्यों हो गया, प्रेशर में थे, अनड्यू इन्फ्लुएंस में थे, क्या क्या डर था, आपको जान का खतरा था, किसी ने धमकी दिया, ये सारी चीजें एक्सप्लेन किया ना, तो कभी भी उसको एफआईआर फाइल करके फिर देख लो ना, वो अनवय नाइक का केस का ड्रामा क्या हो गया था, याद है ना आपको? ये इसीलिए ये सारे चीजें होगा। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि कनेक्शन अगर निकला, तो वो तो कनेक्शन निकलेगा ही निकलेगा, 100% निकलेगा, क्योंकि है ना एक ही इंडस्ट्री में है, एक ही सारे लोग मिलके काम किए हैं, और सबका अननेचुरल डेथ्स हैं, और सबका सुसाइड थ्योरी ही पुटअप किया गया है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये सीबीआई के पास सारे एविडेंसेस होंगे, जब वो लोग केस इसको जब रिपोर्ट फाइल करेंगे, ये सारी चीजें लोगों के सामने आएगा। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन है शशि जी का, पर उससे पहले रईस भाई भी मेरे को दिख रहे हैं चैट में। सो हेलो रईस भाई, होप यू आर डूइंग वेल। आप हालांकि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हैं, बट आई होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर स्टेइंग सेफ। तो आपके लिए रईस भाई ये क्वेश्चन, ओ सॉरी चरण जी, आपके लिए क्वेश्चन है। CBI was bound to file charge sheet in about another 2 weeks. They will be completing 1 year of investigation on 19th August. Please ask him to elaborate. कितना टाइम हो गया है चार्जशीट का क्या? नहीं, बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड वर्ड नहीं है, बॉन्ड बाइंडिंग नहीं है।
सेक्शन 173(1) में हमने इससे पहले भी पढ़ के सुनाया था आप ही का चैनल में, कल भी मैंने सोम भाई का चैनल पे बोला, उसमें एक रीजनेबल अननेसेसरी रीजनेबल डिले है तो ठीक है, अनरीजनेबल डिले नहीं होना चाहिए। अगर रीजनेबल और अनरीजनेबल क्या है, 1 साल 2 साल 10 साल क्या है, वो उसमें प्रॉपर एड्रेस नहीं किया गया, इसीलिए सालों सालों ये सारी चीजें चल रहे हैं। वहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम लिमिट नहीं है, तो इसीलिए कोर्ट को है ना, अभी मुझे सुप्रीम कोर्ट को जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, या सुप्रीम कोर्ट पूछना चाहिए, जैसे 2G स्पेक्ट्रम में वो स्टेटस मांगता था, सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से सोया हुआ है इसके ऊपर, इसके केस के ऊपर। बहुत सारे लोग वहां गए थे इसका स्टेटस पूछने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का काम बनता है इसका स्टेटस रिपोर्ट मंगवाने के लिए। तो इसका मतलब ये तो नहीं है सीबीआई 10 साल तक 20 साल तक इन्वेस्टिगेशन करते बैठेगा। 12 महीना 365 डेज ये मोर देन सफिशिएंट है ना, एक केस में या 2-10 केस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक तरीके का केस है, ठीक है नहीं है? Got it. Yep. So शिव तपस्या जी भी यहाँ है। वेलकम तपस्या जी, कैसी हैं आप? होप यू आर डूइंग वेल। हेलो वरुण जी, आप कैसे हो? आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। वन थिंग आई वांटेड टू आस्क इज व्हेन इज द एमसीजी टूर विच आप करने वाले थे? मतलब जो भी ऑस्ट्रेलिया में थे एसएसआर के फैंस, वो सब एमसीजी टूर करने वाले थे। व्हेन इज द डेट? करेक्ट, वो मुझे देखना पड़ेगा। आई थिंक उन्होंने एक तो ईमेल भेजी थी। मैं आई थॉट उस एमसीजी टूर का क्या हुआ, वो तो मतलब ही दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि मैंने भी 5 टिकट्स कुछ अंडर प्रिविलेज के लिए ली थी वहां। सो लेट मी टेल यू एग्जैक्टली एमसीजी टूर। क्योंकि इफ आई रिमेम्बर करेक्टली एक ईमेल आई थी उनके तरफ से कुछ दिनों पहले, एमसीजी टूर हैज बीन पुट ऑन होल्ड। और अगर आपने वो टिकट ली थी तो आपको भी ईमेल आई होगी। वी विल वेट फॉर फर्दर अपडेट्स। यस, तो अभी तक आई डोंट थिंक देयर इज अ डेट। लास्ट डेट वाज 27 जून, बट उसके बाद देयर हैज बीन नो अपडेट। सो आई विल टेक दिस अप, आई विल कांटेक्ट राकेश जी and I will let you know. I'll let everyone know what is the status of that. मैं परमिशन लूं वरुण जी? हाँ जी, मैं भी बस सेशन खत्म करने वाला हूँ। So hope Shiv ji, I think you got the response. So we'll get yes, back. I got the answer. Thank you so much. Thank you. All right, चलो, Sharan ji, अभी हम सेशन एंड करने लगे हैं. So yes, thank you so much again for joining, and we'll talk soon. जय श्री राम. All right. Okay. आई सी रईस भाई, सो इसलिए मैं अभी खत्म नहीं करता। हेलो रईस भाई, कैसे हैं आप? नमस्ते वरुण सर, सबको सलाम और हेलो एवरीवन। कैसे हैं? वरुण सर, मैं सरल सर से मेरे को कुछ सवाल पूछना था, तो अभी चलेगा? ठीक है, बाद में पूछूंगा। अच्छा, ओके, अभी बस निकले ही हैं। तो शरद जी, अगर आप सुन रहे हैं और अगर आप आ सकते हैं तो देख लें। बट होप रईस भाई यू आर ऑल गुड, सब ठीक है, एंड आप अपनी फैमिली और सबके साथ सेफ है? जी वरुण सर, मैं थोड़ा यहाँ वेलुपुरम चेन्नई आया हूँ, जरा गाँव आया, घर पर आया हूँ मैं। 22 साल बाद आया हूँ आज। और थोड़ा सैड न्यूज थी, तो इसके लिए मुझे आना पड़ा अचानक। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे बच्चे का भी इंतकाल हुआ था, मेरे लड़के का। तो दूसरे दिन मॉर्निंग में सुबह, जी कोई बात नहीं, तो मॉर्निंग में दूसरे दिन मेरे बारे में सारी चीज़ें चलने लगी, तो मैं इमिडिएटली सारी चीज़ सोशल मीडिया से इससे दूर हो गया। मैं थोड़े दिनों तक मैं शायद मैं मेरी फैमिली के साथ रह जाऊँ, तो इसलिए मैं अभी वेलुपुरम आया हूँ 15 दिन के लिए, और कुछ दिनों बाद फिर से मैं आ जाऊँगा ऊपर। तो ऐसी चीज़ें हुई है, तो इसके लिए मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहता था। तो कुछ दिनों के लिए मैं सोशल मीडिया से काफ़ी दूर जा रहा हूँ, लेकिन आपसे फोन नहीं हो सर, मैं आपके साथ हूँ। और नहीं, वो तो पता है, बस अभी बट जो भी है मोमेंट मैंने, जी आप बोले।
मैंने गुस्से में भी ये बोल दिया मैं मूवमेंट छोड़ के जा रहा हूँ, तो मैं एसएसआर मूवमेंट से दूर नहीं हूँ सर, और ना पहले से ना दूर था, ना अब दूर हूँ और ना कभी दूर होऊंगा। जस्टिस तो और इंसाफ के लिए तो मैं हमेशा साथ में हूँ सारे एसएसआर के। तो कुछ लोगों को भी थोड़ा बुरा लगा, और मुझे मतलब मैं बजाय जानकारी किसी को दिया नहीं कि क्या हुआ है मेरे साथ में, तो फर्स्ट टाइम आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो ये सब राइट। लोगों नहीं, ने हम मुझे, सब भी जो आपके अच्छे साथ हैं लोग रईस भाई। स्पेशली इस हैं, सैड जो मोमेंट में तो ऑब्वियसली हम सब आपके साथ हैं, प्यार भगवान अल्लाह सब आप करने वाले लोग आपकी या आवाज़ कट रही है, रईस भाई आपकी आवाज़ कट रही है। जैसे उन्होंने मुझे बहुत से आपको रईस भाई आपकी आवाज़ कट रही है, आपकी आवाज़ कट रही है, हमें आवाज़ नहीं आ रही। आई डोंट नो इफ अदर्स कैन हियर हिम बट मुझे आवाज़ नहीं आ रही। नहीं, उनकी आवाज़ नहीं आ रही। फिर अच्छा। शायद मोबाइल नेटवर्क पे हैं वो। हाँ, रईस भाई आपकी आवाज़ नहीं तो आ रही। मेरे पास भी एक क्वेश्चन था एडवोकेट शरण जी के लिए कि हाँ। सीबीआई ने अभी तक ऐसा कोई केस रहा है जो बहुत सालों बाद उन्होंने कोई चार्जशीट फाइल करी है किसी केस में? एक सेकंड, एक सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज़ वेल। रईस भाई अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप एक तो वरुण सर, क्लैरिफिकेशन देंगे आपके लिए, मुझे लगता है शरण तो जी भी आपके लिए वापस आए हैं। पर एक क्लैरिफिकेशन आप करेंगे प्लीज़ रईस भाई अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? की सवाल अ, एक था एक सोशल मैं मीडिया पे एक ये कहा मैं कहा गलत हूँ सर, मुझे रईस भाई जरा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। रईस भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बताइए। कैन यू प्लीज़ जॉइन बैक? आप दोबारा जॉइन करेंगे रईस भाई ज़रा? ओके, लुक्स लाइक उनका नेटवर्क इश्यू था। हाँ जी, शरण जी आपकी थैंक यू फॉर कमिंग बैक। मुझे लगता है आपने सुना होगा शायद रईस भाई को, इसलिए कैन यू हियर अस? शरण जी आप म्यूट हैं। नहीं, मैं आधा सुना, पूरा नहीं सुना। हाँ, तो नहीं वो मैंने सोचा आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते थे शायद, बट उनका एकदम से अच्छा, नेटवर्क खराब हो गया तो मैं उनकी वेट कर रहा हूँ वैसे तो। बट आई डोंट नो ओके, कोई आपने बात अगर कोई वो बात सुना कि नहीं सुना कि अनफॉर्चुनेटली रईस भाई के बेटे का इंतकाल हुआ अभी रिसेंटली, जिस वजह से वो वहाँ गए हैं। नहीं, नहीं, मुझे मालूम नहीं था, सही में मालूम नहीं है। मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी अभी पता चला। सो क्या क्या हुआ था, क्या हुआ था? अभी अभी बस उन्होंने सिर्फ इतना, मैंने सोचा था मैं उनको फ़ोन करूँगा इसके बाद, बट अभी मैं और कोई क्वेश्चन या इट्स एब्सोल्युटली। सो एक तो काम ये करेंगे, कॉल करेंगे नेचुरल उनको। है क्या, कोई फाउल प्ले है? नहीं, लग तो नेचुरल ही रहा है जिस तरह से उन्होंने बात की है, बट अब फ़ोन करके बात करेंगे फिर पूछते हैं शरण जी। मैं भी उनको फ़ोन ही करूँगा। तो मैं सेशन ज़रूर जल्दी ख़त्म करूँगा और ऑफ़लाइन ही बात करते हैं। सो थैंक यू। मैं तो यही कहूँगा। सलोनी जी आप कुछ कहना चाहती हैं? प्लीज़ आप वापस आई, मतलब आप आई हैं, सो प्लीज़। जय श्री राम। जय श्री राम। शरण जी, जय श्री राम। जय श्री राम वरुण, सलोनी जी, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी रईस जी के बेटे का सुन के तो बहुत शौक लग गया। आई नो, हमको मुझे तो भी। किसी को मालूम नहीं था ऐसा। दिस इज रियली सैड एंड आवर कंडोलेंसेस विद रईस जी। प्लीज रईस जी, आप और आपकी फैमिली के साथ हम सब हैं। या आप हिम्मत मत हारिए, हम सब हैं। भगवान आप लोगों को हिम्मत दे, की आत्मा को शांति दे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। दूसरी बात, वरुण, हाँ जी। जैसे ये जो दिशा का केस और जो बाकी अदर मर्डर्स, 13-14 murders have happened in Yep. a span of I think 2 months time or something, 2 or 3 months time. Yep. तो ये सब जो है ना, that is why see the Supreme Court and everything was aware that it is only not 1 or 2 murders. There are number of murders have happened, Yeah. and that is why probably they have given the
go ahead to CBI and said, whatever number of murders have happened, related to Sushant, because see, people who have died, they were all connected with Sushant in some way or the other, his Correct. team members or whatever. Yep. तो उन सबका investigation CBI करेगी, and everyone who has gone from Sushant's team and Sushant's contacts, they will be probed by CBI. So it will take long, but सबका चिट्ठा निकल के आएगा. Yep. So individually ये नहीं है कि किसने केस किया है, किसने नहीं किया है, किसी के पेरेंट्स ने किया है, किसी के भाई ने किया है, उससे कोई मतलब नहीं है. ये सब जितने भी रिलेटेड केसेस हैं टू सुशांत, उनका सबका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर रही है और करेगी, and truth will come out for sure. I have firm faith in God, and I have firm faith in our agencies, government and everything, that this time these cases will not just die down like that. The result will come out in a positive way and justice will be served to everyone. Right. Even Jia Khan's case, huh? Even Jia Khan's case. No, absolutely, Saranji. I mean, I completely agree with that. The only point that was being made, right, वो ये था वहां पर कि जैसे दिशा की केस में, right, उसकी family is completely, saying that there is no foul play. Now, yes, सुशांत के केस में अगर investigation के through कुछ निकल के आता है, then definitely there will be, some kind of investigation, further investigation, मैं ये कहूंगा. But अगर individual level पे देखा जाए, तो कुछ ऐसे केसेस, अब जैसे आसिफ बसरा, उस केस के अंदर देयर इज नो इन्वेस्टिगेशन हैपनिंग राइट नाउ. वो क्या नाम था उनका, एग्नेस फॉर एग्जांपल, हम लोग एग्नेस, नहार, हाँ, समीर शर्मा, इन सब के समीर जो बांगड़ा, समीर बांगड़ा एक्सीडेंट डिक्लेयर करके केस बंद कर दिया गया. दिस इज एन एक्सीडेंट अकॉर्डिंग टू देम. नाउ let them, I tell you वरुण, हाँ जी, किसने केस बंद कर दिया, किसी, इवन आसिफ बसराज, केस बंद करने से कोई मतलब नहीं बनता है. ये सब somehow related to सुशांत हैं. और पेरेंट्स, ठीक है, दिशा के पेरेंट्स जो हैं वो दे आर स्कैर्ड और थ्रेटेंड और व्हाटएवर, तो वो नहीं आगे आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट कम्स अंडर सुशांत केस. सो कोई फाइल करे या नहीं करे, एफआईआर करे नहीं करे, और केस करे नहीं करे, ये सब का इन्वेस्टिगेशन करेगी सीबीआई. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. Right. No, absolutely. I agree. All right. I see. Sure. I think शरण जी, रईस भाई को फोन ही करेंगे, उनसे बात करेंगे. उसके बाद चलो कोई बात नहीं. हाँ जी, I think it's a network issue. Thank you so much. Thank you, everyone. Obviously, I'm going to end the session, but before I end it, anybody who wants to say anything before we end it? क्योंकि मैं फरीदा जी को जरूर जवाब दूंगा, बट उससे पहले अगर कोई और कुछ कहना चाहता है तो प्लीज गो अहेड. वरुण, एक क्वेश्चन था आपके लिए, अगर आपको शायद पता हो उस बारे में कुछ. हाँ, एक सेकंड, लेट्स गो विद सलोनी जी. सलोनी जी प्लीज. आप I just wanted to leave and say, and give some positive vibes to everybody, not to get scared or not to get depressed about anything. And this case, Sushant's case, including everyone else who has died related to Sushant, will 101% क्या 1000% will get justice. And just relax and just have patience. And कुछ भी और कोई न्यूज आता है, कुछ आता है, वो सब पीआर है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए बिल्कुल भी, और विश्वास रखिए कि ये केस सॉल्व होंगे. सो प्लीज बी पॉजिटिव, बिकॉज हम लोग सब पॉजिटिव वाइब्स डालते हैं ना, तो वो वापस लौट के हमारे पास आती हैं, तो वैसा ही काम होता है. So do not think negative at all. Just be positive always
and everything will go in our favor, everybody's favor, Sushant's favor. So please be patient. That's it. Thank you very much. Bye, थैंक यू सो Varun. मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, हाँ जी, बोले कृष्णा जी, आप कुछ कह रहे थे। अब मेरा एक वही सवाल था, क्या आपको पता है जिनका व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ था रिया चक्रवर्ती का, पिठानी का और नहीं, आनंदी वगैरह का, करेक्ट। इसमें क्या इनका ग्रुप का नाम था, आपने देखा होगा NIFW करके था, क्या उसको या आपको कुछ डिग आउट कर पाया, क्या आपको कुछ पता चला नहीं, NIFW का मतलब अभी क्या तो है? नहीं। आई थिंक यू ब्रॉट अप अ गुड पॉइंट, यू नो, इसके बारे में I think we should definitely do a little bit of investigation. So thanks for bringing this up. We will definitely क्योंकि इससे मुझे ऐसा शक, look जो into it. आपने जो लास्ट सेशन किया था, मैं उससे इसको रिलेट कर पा रहा हूँ कि जैसे अगर आपने जो कहा मुझे वो सही लग रहा है कि रिया जो थी, शी वाज अ पार्ट ऑफ द टीम, जो पिठानी आनंदी वगैरह एक साथ काम करते थे। शी वाज नॉट गर्लफ्रेंड ऑफ सुशांत, शी वाज जस्ट स्टेइंग एज अ रूममेट विद सुशांत, उनके फ्लैट में जो उनका हाउस था उन्होंने Right. ही चेंज करवाया होगा डेफिनेटली, क्योंकि वो भी आमिर खान के किसी अंकल का फ्लैट है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे जो NIFW से मुझे सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि शायद FW मतलब फिल्म वर्क्स हो सकता है, कि शायद सुशांत का कुछ स्कोप होगा, न्यू इंडिया फिल्म वर्क्स करके शायद कुछ हो, Yeah. और सुशांत की अपनी टीम बनी हुई हो उसके अंदर, तो Right. उन्होंने उस नाम से ग्रुप बनाया हुआ होगा और वो उसके अंदर काम करते थे उस ग्रुप में, और दैट्स हाउ दे यूज्ड टू कम्युनिकेट। Right. Right. नहीं, इसके obviously we should definitely you know, उस ग्रुप के अंदर अगर if I remember correctly आनंदी थी और पिठानी था और कुछ लोग, और obviously रिया चक्रवर्ती थी, बट मिरांडा मिरांडा भी था शायद। हाँ, वो उस पे शायद वो ड्रग्स वगैरह के कुछ स्क्रीनशॉट थे जो श्वेता कीर्ति ने शायद शेयर किए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, वो चैट्स को भी दोबारा देखना पड़ेगा। और लेट मी एक्चुअली डू अ लिटिल बिट ऑन दैट फॉर श्योर। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू ब्रॉट। आई थिंक जब हम बैक टू बेसिक्स कर ही रहे हैं, आई थिंक इट डेफिनेटली वी शुड लुक एट दोज एज वेल, कि उसका और क्या। जितने भी व्यूअर्स हैं, आप जो 300-400 व्यूअर्स जो आप जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। या तो ये सुशांत का ग्रुप है या NIFW नाम से कोई और ग्रुप है, या तो गैंग्स का ग्रुप हो सकता है, किसी न किसी नाम से कोई कीवर्ड जरूर मिल सकता है हमें, और हमें यहाँ से कुछ स्कोप मिल सकता है ढूंढने के लिए, कि कहाँ जाता है ये ग्रुप, कहाँ से क्यों बना था। राइट कोई राइट रैंडम वर्ड नहीं है ये इस नाम से कुछ नहीं मिल रहा। मैंने सर्च किया था न्यूज़ आर्टिकल्स में भी, जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कुछ नहीं लिखा, सीबीआई ने भी कुछ नहीं बताया कि NIF या पिठानी का स्टेटमेंट नहीं दिया कि क्या है ये ग्रुप का नाम, क्यों था। डेफिनेटली देयर इज अ बिग सीक्रेट, और यहाँ से कुछ हम इंफॉर्मेशन लीक करा सकते हैं, पता कर सकते हैं। या नो एब्सोल्युटली need immediate some weed, I don't know, कुछ भी कर सकते हैं, but yeah, let's not definitely, you know, I was guessing New India. So we'll definitely talk about that, guys. So thank you so much again, Krishna ji, Shivaji, Guruji, everybody for joining. Thank you, and we'll continue back to basics from tomorrow. Before I end, ये एक comment था फरीदा पटेल जी का। पहली बात, और बड़ी क्लियरली ये इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सब लोगों ने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई सेड आई हैव नो नैरेटिव टू गिव। मैं यहाँ पर बैठ के कोई स्टोरी लाइन, कोई नैरेटिव बिल्ड करने नहीं आया, ना मेरे पास आपने कोई नैरेटिव्स हैं। कल जो जो आपने मुझे पूछा, जो मैंने बोला जो मोदी जी को के बारे में, आपने कोई बोल रहा था कि आपने पेंगुइन और खतरी को क्लीन चिट दे दिया है। पेंगुइन और खतरी को क्लीन चिट दे दिया भाई साहब। कल से कल मैं के सेशन ट्विटर में पे लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनको जरा बुलाया, इनको साथ में ढूंढा जाए, सबके साथ, और इनको पकड़ा जाए। इनको कौन क्लीन चिट दे सकता है भाई? कुछ भी। ये तो, और खतरी तो आपकी ये बातों सब से वही लगा, है। आपकी बातों से किसी को वही लगा। वो किसी को लगी जाए यार, यहाँ पर किसी एक बंदे या दो बंदे के उससे नैरेटिव से नहीं चलता स्टोरी। जिसको जो लगना लगी जाए। यू नो, आई डेफिनेटली डोंट केयर अबाउट सर्टेन पीपल। बिल्कुल क्लियर है, द मर्डरर, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो यू नो, द सस्पेक्ट नंबर और द क्रिमिनल नंबर 1 इज डेफिनेटली, यू नो, छतरी। तो छतरी से रिलेटेड तो बात, कोई अगर ये कहे कि उसको कोई भी क्लीन चिट दे, तो मैं तो कहूंगा उस बंदे को ही अरेस्ट कर लेना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि एनीबॉडी गिविंग क्लीन चिट टू हिम डेफिनेटली इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी।
पहली बात। और अगेन आई डोंट केयर अबाउट व्हाट एनी इंडिविजुअल पर्सन फील्स। यहाँ पर जितने भी लोग जुड़ते हैं, सबके सामने सब आपस में बात करते हैं, व्यू शेयर करते हैं। बिल्कुल क्लियर है, देर आर पीपल, वी ऑलरेडी नेम 7 to 8 पीपल, उनके बारे में हम सेशंस करेंगे, उनके बारे में हम बात भी करेंगे, चाहे वो रिया हो, चाहे खत्री हो, चाहे वो सूरज पंचोली हो, चाहे वो, और हम तो क्लियर नाम लेते हैं कि ये सब लोग, और उसके बाद चाहे वो वाजे हो, चाहे वो कोई भी हो, वी विल डेफिनेटली कीप ऑन टॉकिंग अबाउट देम टिल द टाइम दे आर नॉट बिहाइंड बार्स। ये फालतू के लोग, फालतू की बातें, नॉनसेंस जो है, ये आई थिंक डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट उन पे ही चलते हैं तो अच्छा रहेगा, यहाँ पर ये करने की जरूरत ही नहीं। सो एक बार फिर से, ऐसा मत बोलो, मुझे फिर गाली देंगे। तुम्हें क्या गाली देंगे? तुम यार थोड़ा सा अगेन गुरु, मैंने पूछ लिया इसलिए। हाँ, मैं साफ सी बात ये बोलूंगा, थोड़ा सा ना, बी अ लिटिल, क्या कहते हैं उसको, क्लियर अबाउट योर थॉट्स एंड क्लियर अबाउट योर इंक्लिनेशन, कि यहाँ पर आप क्यों आए हो। मैं हर एक के लिए कहता हूँ, मैं आज आपको भी बोल रहा हूँ और मैं अपने को भी पूछता हूँ कि वाई एम आई हेयर? एम आई हेयर टू क्रिएट सम नेम फेम फॉर माई सेल्फ, या मैं चैनल चलाने आया हूँ, या मैं सुशांत के लिए खड़ा होने आया हूँ? अगर सुशांत के लिए खड़े हो तो ये फालतू के जो भी बातें बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उन लोगों को रोकना भी अब हमारी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो प्लीज यू नीड टू, जैसे सतीश जी आप बोल रहे हैं, यू कंपेयर्ड पीएम विद दोस क्रिमिनल्स। सबसे पहली बात तो, मैंने किसी क्रिमिनल को, और पीएम इज प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एक टाइटल होता है, वो किसी भी कंट्री का होता है। एंड डेफिनेटली अगर मैंने ये बोला कि चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सीईओ हो कंपनी का, उससे एक एक मतलब जो निकाला जाता है, जो नॉर्मल लोगों को मतलब निकलता है, वो होता है लीडर ऑफ दैट पर्टिकुलर पैक और दैट पर्टिकुलर कंट्री और दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो किसी कंपनी का जो लीडर होता है, ही और शी इज अकाउंटेबल। सो यस, वी कैन नॉट गिव क्लीन चिट टू एनीबडी, चाहे वो कोई भी हो। एंड ऑफ द डे, किसी ने कुछ किया है, नहीं किया है, एवरीबडी हैज टू बी अकाउंटेबल। कल को मैं कुछ करता हूँ, वो मैं अकाउंटेबल हूँ उसके लिए। एट द सेम टाइम मेरे पेरेंट्स को भी साथ में पूछा जाएगा कि ये क्या है, ऐसा क्यों करता है बेटा आपका, इवन दो दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। बट इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें, टोटली यूजलेस, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी, एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड, इवन सतीश जी, अगर आप सेशन में थे और अगर आपने सुना होगा, तो I thought it was very clear and evident, but uh, if people still believe, I'll just say, I never said that. Absolutely, I've never said that, and I will never say that. But it is the title which I used. All right. Anyways, I think लोगों की इंग्लिश समझना और कई बार हिंदी समझने में भी बहुत सारी बातें होती हैं। कोई कुछ भी बोले, अगर पेंगुइन और खत्री को क्लीन चिट कोई भी दे रहा है, आई एम टेलिंग यू ऑन योर फेस, and I will definitely tell on everybody's face, anybody who's giving both of them any clean chit is a criminal in my eyes and definitely is equally responsible. So इससे ज्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहूंगा. All right, before I end, I saw Humanity Matters here. Hello Humanity, how are you? हेलो, आई एम फाइन, हाउ आर यू? Very good. जय हिंद वरुण जी, गुरु जी, जय हिंद। हाँ जी. और मैं एक्चुअली बहुत लेट ज्वाइन किया, या टाइमिंग आपका थोड़ा चेंज हुआ आई थिंक सेशंस बस का। अगले 10 दिन के लिए थोड़ा चेंज होगा, 10-12 दिन ओके और है, ओके, उसके बाद एक ठीक बार आई ठीक। एम बैक होम, आई विल डेफिनेटली विल बी बैक ऑन द सेम टाइम। एनीवेज, इन बोथ वेज, अगर आपका जो भी टाइमिंग है, वी ऑल लिसन टू दिस चैनल, एंड अगर नहीं होता तो रिपीट में, मतलब बाद में देखते ही है, इसको सुनते हैं। थैंक यू। और आई मीन वी आर सो सो थैंकफुल कि आपका जो चैनल है वो एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ फर्स्ट फॉर सुशांत मूवमेंट, मैं मानूंगी इस चैनल को, और जो अभी तक आप मेंटेन करके रखे हो अपनी डिग्निटी है इस चैनल की। ऑब्वियसली बीच में जो एक मॉन्स्टर भी इससे पैदा हुआ है इस चैनल से, बट बहुत अच्छा हुआ कि वो उसकी एक तरह से आप जरिया बने हो कि उसको उसकी सच्चाई आपने दिखाई, सामने लाए, तो आप उसके लिए मतलब हम सब थैंकफुल होने चाहिए कि और टाइमली आपका सब उससे मतलब ओपनली सब सामने बाहर आ गया, तो एंड यू आर टोटली डिसोसिएटेड विद दैट पर्सन। तो
people believe in you, in your channels. Even all dignitaries, panelists, or moderators, they are so fine, and they are very well read person. And like Miss Deshpande, Girja ji जो है, they Yes. all are so very knowledgeable person. Yep. तो यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, वो जैसी राजा वैसा प्रजा, तो मतलब जैसा चैनल है वैसे फॉलोवर्स भी उसी हिसाब से जुड़ते जाते हैं, और आपका मतलब चैनल अब आपके स्टेटमेंट को ना लोग पकड़ लें कि राजा प्रजा वाला नहीं करना है पकड़ना तो ही चाहिए उन्हें, तो क्योंकि ये बहुत गंदगी फैल रही है, हाँ, और ऑल ऑफ सडन बहुत मैं देख रही हूँ कि ये अगेन दे आर गोइंग टू द फैमिली एंड लाइव थ्योरी को माइंड में लाइव रखने के लिए कहा जा रहा है कि आप इसको पॉसिबिलिटी को एक तरह से आप मान के रखो। तो आपने सही कहा Yeah. कि जो ऐसा कर रहे हैं उनको रोकने का भी हमारा एक काम, एक एक्स्ट्रा काम हो गया है, और वो हम पूरे करेंगे, आपके साथ मिलके करेंगे उन सबको। Right. और तरह तरह की थ्योरीज दी जा रही हैं पब्लिक को, पता नहीं कैसे क्या लोग क्या कंफ्यूजन है फैमिली को। कुछ नहीं कंफ्यूजन किसी फैमिली को सुशांत के, ना कोई आपसे कह रहा है कि आप हमारे बारे में डीपली डिस्कस करो। इतना आपको थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए फैमिली को कि उनके इंटरनल मैटर्स में एटलीस्ट नहीं घुसे। हम सबको एज ए कर्टियस होना चाहिए। लाइक ठीक है, जो पब्लिक फिगर था सुशांत, इट्स ऑल राइट, बट नॉट देयर फैमिली मेंबर्स। एंड इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स, इमोशन, क्या उस घटना के टाइम क्या उनके साथ बीता, क्या चला, we are not we should not be judgmental about those silly things, and they are discussing जैसे कि शेरलॉक होम्स बने हुए हैं some people, and people जो जो नए हैं उनके माइंड में तो फिर गलत थ्योरी जाती है, और वो केस रिया के अगेंस्ट फिर आप देखोगे तो उसको वो उस साइड में जाता है कि हाफ ऑफ दिस एसएसआर started believing a life theory, and family members को cursing, they are all cursing the family members. So sad to hear those pathetic matlab comments and all. Why they are doing, I don't know what is the reason behind these narratives. So we are this platform is here, and we'll keep noticing what the others are if they are not in the favor of the case, so we will definitely expose them, and we are with you only. No, thank you. मैं तो यही कहूंगा, Manati, I mean, to be very एक सवाल honest, था, very fair. ठीक है। Sorry? ऐसा मतलब एक मिनट गिरो, नहीं 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 होल्ड ऑफ, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, ह्यूमैनिटी, to be very fair and to be very frank, I don't expect people to be just on this platform. जाएं, हर जगह जाएं, सुने लोगों को, लोगों से बात करें, और जैसे अगेन मैं वही शरण जी का फिर कोट करता हूं कि हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा या कोई पॉजिटिव सुशांत से रिलेटेड है, सुने, लेके आए, हमारे साथ भी शेयर करें। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कोई कोई यहाँ पर एटीट्यूड नहीं है, यहाँ पर कोई किसी तरह का वो नहीं है कि मैंने, मेरी शर्ट सबसे साफ है, या मैंने सबसे पहले किया, या व्हाटएवर नॉनसेंस जो भी लोग कहते हैं, राइट। बात ये है कि सुशांत की इस मूवमेंट को जब तक पॉजिटिवली आगे लेके जा रहे हैं, प्लीज 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 उनके साथ रहें। जो नहीं है उनको पहले हम कहते होते थे उनको इग्नोर करें, यस मैं अभी भी कहूंगा इग्नोर करें, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू शट दोज पीपल अप जो गलत बोल रहे Definitely. हैं। सो दैट्स द ओनली थिंग। बट प्लीज मैं फिर भी मैं कल को ये नहीं कहूंगा लोग इसको भी एक इशू बनाए कि वरुण तो यही चाहता है, वरुण का मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, पहली बात, क्योंकि ना तो मुझे यूट्यूब चलाना है, ना मेरा यूट्यूबर में कोई फ्यूचर है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सुशांत। जब तक है, जब तक कई चीजें, और एज एन आरजे जो मैं बहुत कुछ करता था, वो मेरा एक डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगा, because I have a passion for connecting people. I have a passion of connecting with people also. तो मेरा वो पैशन कहीं नहीं जा सकता, because that's who I am. कल को मैं किसी और चीज, किसी और इशू, किसी और टॉपिक के बारे में भी बात करूंगा, मैं करूंगा, क्योंकि दैट इज माय पैशन। ऐसा फालतू की बातें नहीं मैं करना चाहता कि यहाँ पर बैठ के मैंने कोई बैठ के यूट्यूब चैनल्स बनाने हैं या लोगों को प्रमोट करना है। आई हैव नो सच इंटेंशन एंड आई बिल्कुल डोंट बिल्कुल प्रमोट एनीवन। गलत हो गया यार मेरे से, मैं एक इतनी बड़ी गलती करके आज नहीं, तक, आप कई बार माफी मांग चुके हो हाँ, उस एक चीज इतना के बड़ा लिए, मॉन्स्टर, और इतना बड़ा मॉन्स्टर खड़ा कर दिया मैंने। पैदा किया, तो वो ये बात सच है आपकी कि जिसको जिस चैनल में जाना है वो जा सकते हैं, बिकॉज इट शुड बी देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना कॉन्फिडेंटली उनको किसी भी चैनल में जाइए, जहां आपको सही लग रहा है वहां सही बोलिए, और जहां गलत लग रहा है वहां गलत बोल के भी आइए। तो लाइक मैं खुद उस एक चैनल पे एक बार गई थी, जानबूझ के मुझे जाना ही पड़ा, और मुझे कुछ बोलना था, मैं बोल के वो आई भी उस चैनल पे ओपनली और खुले में बोल के भी आ गई।
क्योंकि वो ब्लफिंग दिया जा रहा है उस चैनल से, लोगों को सॉफ्ट धमकियां दी जा रही हैं कि हम लोग ये हैं, हम वो हैं, हम ये इसका वो, और इतनी गंदी लैंग्वेज यूज की जा रही है, बिल्कुल चवन्नी छाप जैसे होता है जो उस तरीके के मतलब कोई भी अगर कमेंट करे उसके रिप्लाई में, या कोई अनजाने में भी इनको ऐसा कमेंट किया जा रहा है कि जो आपका मतलब एक बहुत ही फिल्थी लैंग्वेज के साथ रिप्लाई दिया जाता है उसमें, एंड आई मी माई सेल्फ और आई एम द बेस्ट काइंड ऑफ, वो एरोगेंट Yep. इतना है उस चैनल में, एरोगेंसी बहुत है, और वो लोग सपोर्ट करते हैं और वो उस पे चने के झाड़ पे चढ़े जा रहे हैं। और उनकी लैंग्वेज, मैंने यही सोचा कि मैं जानबूझ के आज जाती हूँ उसको बोल के आऊंगी, और मुझे पता है कि उसकी लैंग्वेज से मुझे कुछ उसके कहने से कोई सामने वाला तो नीचा नहीं हो जाएगा, बट एटलीस्ट वो सामने शो हो जाएगा कि वो आप कैसे इंसान हो, जो आप किसी सुशांत की सिस्टर्स को नहीं बख्श पाए, Yep. Yep. उनके फादर को नहीं बख्श पाए, Yep. सिस्टर्स के हस्बैंड्स को नहीं बख्श पाए, Yep. तो आप किसी और जो सपोर्ट में आ रहा है, तो आपके लिए किसी और के लिए कुछ बोलना तो बहुत ही कॉमन सी बात है। तो ये आपकी अपब्रिंगिंग दिखाया है, आपने अपनी अपब्रिंगिंग दिखाई है कि आप इतनी गंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हो कि जानते नहीं है कि मतलब ये सोचते हैं कि हम सर्वे सर्वा है और सामने वाला मतलब पता नहीं कौन क्या है। तो अगर आप सर्वे सर्वा हो तो ये आपकी लैंग्वेज से शो करता है कि आप कितने नीचे पानी में, और कौन कितना मतलब आपका संस्कार शो करता करेक्ट, करेक्ट। नहीं, आपका इसी का बड़ा सिंपल सा एक वर्जन है कि हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। ऐसा ये लोग समझते हैं और इतने फालतू के नैरेटिव्स लेके आते हैं। और सरप्राइजिंगली ये है आजकल कि बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, वेल इन्फॉर्म्ड लोग व्हेन दे फॉल प्रे, आपने राइट? तब ओके, आप बोलो गुरुजी, आप बोलना चाहते नहीं थे नहीं, तो। आपने बोला जो वीडियो में देखा, आपने बोला कि अगर छतरी और पेंगुइन को क्लीन चिट नहीं दे सकते तो आप पीएम को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते, मतलब मोदी जी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते, मतलब आप, हाँ, मोदी जी को उन दोनों के साथ कंपेयर कर रहे हो। मोदी जी कहाँ से आए? प्राइम मिनिस्टर कहाँ के आए? मैं कहाँ से इंडिया की बात की? प्राइम मिनिस्टर वाज जस्ट अ टाइटल, राइट? मैं इंडिया में नहीं बैठा। आई होप यू रियलाइज दैट गुरु। मैंने प्राइम यस। मिनिस्टर बोला, राइट? प्राइम मिनिस्टर कहाँ का? मैंने इंडिया का बोला प्राइम मिनिस्टर। मैंने मोदी का नाम लिया। मतलब अगर हाँ, आपने 1 to 1 1 प्लस 1 अगर 11 करना, यस, एनीबॉडी कैन डू इट। 1 प्लस 1 मैं 111 भी बना सकता हूँ बॉस। बट डजंट रियली मैटर। पीएम वाज टाइटल, सीईओ वाज अ टाइटल। किसका सीईओ? टेस्ला का सीईओ या सिटी बैंक का सीईओ या सिस्को का सीईओ? किसका सीईओ? है। ये तो एक तरह का फ्रेज होता है, लाइक हम एग्जैक्टली। बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, हाँ, आप क्या टाटा बिरला समझते हो क्या अपने आप को, या पीएम समझते हो क्या, टाइप्स हाँ, इन एग्जैक्टली। दैट वे। तो अगर कुछ भी बनाना है तो बना सकते हो बॉस। वो तो मैं किसी के वर्ड्स को कहीं भी ट्वीक करके मैं कुछ भी स्टोरी बना सकता हूँ। यही तो मुझे अभी किसी से पता लगा, राइट? कि मेरे किसी एक स्टेटमेंट पे 4 से 6 घंटे, पता नहीं कितने लंबे का वो लिखा था कि सेशन बन गया। तो बनाओ यार, आई एम ग्लैड। आप 10 घंटे का बनाओ, आप 10 दिन के सेशन बनाओ। यू नो फालतू के ये एक अभी लखनऊ का ना एक कांड हुआ है जहां पर वो लड़की ने शायद विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की है। लोगों को ना आजकल आदत है, किसी को भी पकड़ो, किसी को भी। लखनऊ के बारे में बता दूं, लखनऊ के कांड के बारे में, ये जो है ना, ये 2022 इलेक्शन के लिए ही इस लड़के को प्लान किया गया है, वरना वो खुद बोल रही है कि हर दिन मुझ पर हमला होता है जब भी घर से निकलती हूँ, तो हाँ, पुलिस में क्यों नहीं बताया कुछ ज्यादा ही है? अब यहाँ पर भी मैं एक हर दिन लाइन हमला बोलता होता हूँ। है, यहाँ पर तुम भी हर मैं दिन हमला एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल बोलता हूँ कि ये जो लड़की है, जो लखनऊ वाली, बड़ी ऐश्वर्या राय है कोई। अब इसके ऊपर भी कल सेशन बनवा लेना बॉस, कि मैंने उस लड़की को ऐश्वर्या राय से कंपेयर कर दिया। बॉलीवुड के सपोर्ट कर रहा हूँ मैं सेशन का अगर कंटेंट किसी को चाहिए मैं दे दूंगा बॉस। मेरे पास बहुत है, मैं बहुत कुछ बोलने वाला, मैं बहुत बोलता हूँ। मैं मेरी यही सबसे बड़ी एक स्ट्रेंथ कहो या वीकनेस कहो, मेरी बोलने की है। तो मैं 50 चीजें ऐसे बोलता हूँ। अगर उसके ऊपर सेशंस बनाने बनाओ बॉस, जिसने बनाना है, जिसने क्वेश्चन करना है करे। एंड ऑफ द डे मैं फिर वही हूँ। मैं एम गोना कीप माय ओन स्टैंड एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीबॉडीज टाइम, क्योंकि ऐसे यूजलेस लोगों के ऊपर तो डेफिनेटली बिल्कुल टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। एंड थैंक यू टू जो भी ये वन डे था। ऐसे ऐसे कमेंट्स और ऐसी चीजें ही आई थिंक रियली मेक माय डे। हालांकि शुरुआत जैसी भी रही, बट इतनी तो गारंटी है बॉस, जब खत्म करेंगे तो इसको हम जस्टिस लेके ही खत्म करेंगे, जैसे मर्जी ले। एंड दैट्स व्हाट आई रियली वांट, चाहे मैं हूं ना हूं, बट हम लोग सब मिलके
जस्टिस के लिए फाइट तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे, चाहे जितने मर्जी लोग हमें कोशिश कर लें फालतू में, दे ट्राई टू ब्रिंग अस डाउन, दे वोंट, दे कैन। जैसे मैं बड़ी बार ये एक लाइन बोली है, और मैं ऐसी बहुत लाइनें बोलता हूँ गुरु, ये भी अगर किसी को लेनी है वो भी ले ले, कि दे कैन पॉज अस बट दे कांट स्टॉप अस। तो पॉज करवा लेंगे फालतू की बातें करके, दे कैन डेफिनेटली स्लो डाउन, बट एंड नहीं होगा यहाँ गेम। गेम तो तभी एंड होगा जब ये छतरी से लेके, पेंगुइन से लेके, रिया चक्रवर्ती से लेके, पिठानी से लेके, जब तक ये लोग जेल नहीं होंगे, जब तक इनको इनकी कुकर्मों की सजा नहीं मिलेगी, तब तक बॉस हम तो कहीं नहीं जाने वाले। जिसने जो लेके आना है, किसी ने मेरे को मोदी के बारे में करवाना है, यस, मैं हमेशा से शुरुआत से बोला है, आई वॉज नेवर अ फैन ऑफ नरेंद्र मोदी, आई वॉज नेवर अ फैन ऑफ द वे। अगर आपको याद हो, एक सेशन हुआ था जहां पर फ्रीज धाम के साथ कोई ऑडियो का एक डिस्कशन हो रहा था, वहां पर उसने कुछ और ही बोला, और वहां पर हम दोनों के अगेंस्ट ये हो गया कि ये लोग तो क्या नाम है, रिपब्लिक या अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। अरे भाई, हमने अर्नब के अगेंस्ट नहीं बोला था, तब भी हमने ये बोला था कि वो जो इतना लाउड साउंड जो था, जो चीजें होती है, उसके बीच में द ओरिजिनल मैसेज गेट्स लॉस्ट। तो लोगों ने किसी भी चीज को, किसी भी स्टेटमेंट को, मेरे मोदी घर में भी मेरे घर में भी ऐसा ही बोलते हैं। जब मैं देखता था ना उसका पूछ रहा है भारत, और ना मतलब जब भी चलाता मेरे घर में बोलते थे चैनल चेंज कर, चैनल चेंज कर। हाँ, तो मैं यही उस चीज के ऊपर, अच्छा लगता हमने था, कभी लेकिन किसी आइडियोलॉजी, मुझे अच्छा लगता किसी था। के अगेंस्ट ऐसे नहीं बोला, और हम ना बोलेंगे। मैंने अपने आरजे के दिनों में बहुत कुछ ऐसी चीजें, बहुत सारे लोगों के बारे में बात की है। तो जाओ यार, पीछे बहुत कंटेंट है, अगर वो पुराना कंटेंट चाहिए, पुराना बहुत कंटेंट मिलेगा, मेरे से मांग लो, मैं दे दूंगा। अगर पिक्चर्स चाहिए, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड के लोगों की पिक्चर्स हैं, जो मैं दे सकता हूँ, एंड यू कैन टॉक अबाउट देम कंटिन्यूअसली, जितनी बात करनी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे शोज, बहुत सारे होस्ट किए हैं एज एन आरजे, बहुत सारे इंटरव्यूज किए हैं मेरे, फेसबुक पे मैं तो डेटा देने को तैयार बैठा हूँ। जाओ, ढूंढो, करो, टाइम पास करो। अगर तुम जो यहाँ टाइम पास करने जो भी आया है, यू कैन वेस्ट ऑल योर टाइम, या आपके हिसाब से आप यूटिलाइज कर रहे हो, बट मेरे लिए वेस्ट योर टाइम। आई रियली गिव अ डैम अबाउट सच पीपल, एंड आई विल नेवर गेट बॉदर्ड। तो जिसने जो करना है करें यार, हम लोग अपने सुशांत की फाइट करेंगे, हम यहाँ सुशांत के लिए खड़े हैं, एंड दैट इज वेयर आई एम, एंड दैट्स माय टेक ऑन इट। मुझे ये 1 2 4 10 लोग कुछ भी कर लें, आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट, पीरियड। और अब हम और टाइम वेस्ट नहीं करते इस टॉपिक पे। एंड थैंक यू सो मच ह्यूमैनिटी। आई थिंक थैंक यू। मैंने आपका सुना भी था, आई थिंक किसी ने मुझे बताया भी था कि यू वेंट टू वन सेशन, और just keep on doing, we all should keep on doing what we are doing. We are here for Sushant no matter what. हम नो सुशांत मैटर के लिए भी हैं, व्हाट। उसके फादर के लिए भी हैं, सिस्टर्स के लिए भी है। वी विल नॉट स्टॉप, पीरियड। सो सतीश जी व्हाई का आर यू क्वेश्चन लो, अगेंस्ट सतीश पीएम जी का मोदी? क्वेश्चन लो। ये देखो जी, आ गए जी सतीश जी, आपसे भी बात था। व्हाई आर यू अगेंस्ट पीएम मोदी? आई एम नॉट अगेंस्ट पीएम मोदी। मैंने क्या बोला, आप उसको ध्यान से सुने। मैंने कहा कि मैं हर चीज पे, हर एक आइडियोलॉजी पे, हर किसी के साथ एग्री नहीं करता। सिंपल एज दैट। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी। अर्नब के स्टाइल से, अर्नब की आवाज, वो टोन से वहां ऑब्वियसली बॉदरेशन होती है। जैसे अभी गुरु ने भी कहा, उनके घर में भी कहते हैं लोग, वैसे ही मेरे लिए भी है। बट उन्होंने जो सुशांत के लिए किया, एब्सोल्युटली सेम थिंग। मोदी जी ने जो भी कंट्री के लिए किया, जितनी भी चीजें करी, 100% सपोर्ट फॉर दैट। बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं। अब सुशांत के केस में क्यों नहीं आवाज आ रही? क्यों नहीं सुशांत के केस में? जबकि जबकि द फर्स्ट पर्सन, ऑलमोस्ट द फर्स्ट ट्वीट मैं कहूंगा, अगर किसी पॉलिटिकल बंदे का आया था, दैट वाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेइंग, गिविंग अ कंडोलेंस मैसेज फॉर सुशांत। अब क्या हुआ? वाई नो अपडेट? एचएमओ अमित शाह, या होम मिनिस्ट्री का इतनी बार टैग किया, सीबीआई, do I not have I disrespected CBI? I will never disrespect. But am I happy with them? No, I'm not. तो इस तरह से अगर आप करोगे,
हर किसी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, तो फिर तो हाँ, मैं सबके अगेंस्ट ही बोल रहा हूँ बॉस। फिर तो मैं यहाँ पर मैं बाइडेन के अगेंस्ट भी बोलता हूँ, मैं ट्रम्प के अगेंस्ट भी बोलता हूँ, मैं हर किसी के अगेंस्ट बोलता हूँ। ये तो चलता ही रहेगा। दिस इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी। आप ऑल आई आप वांट आप टू आप इंस्टा पे मोदी जी को फॉलो नहीं करते, लेकिन प्रियंका वाड्रा को फॉलो करते हो। अबे इंस्टाग्राम तो एनीवेज, ये सेशन के लिए नहीं है। ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है वरुण जी, आप किसी के अरे ये नहीं अगेंस्ट नहीं, होना नहीं अरे होता है। ये मेरे इट्स मल्टीपल लाइक आईडीज हैं। हाँ, कब कहाँ जिस टाइम मैं आरजे था, क्या करता था क्या नहीं करता था, अगर इन चीजों को उठाना है और हाउ तो डज इट करें। मैटर? सुशांत हाउ के डज दैट केस से इसका मैटर? क्या सबकी अपनी ओपिनियन है, चॉइस है, ये आपका अधिकार है। आप किसी को भी लाइक करें नहीं लाइक करें, फॉलो करें नहीं करें, या आपको अगर पीएम मोदी लोग फॉलो करते थे और अगर उनको कुछ लग रहा है कि अब इनकी पॉलिसीज कुछ ठीक नहीं, तो क्वेश्चन भी करते हैं नहीं नहीं उनको। ऐसा नहीं इसका नहीं, मतलब ये थोड़ी कि अगेंस्ट। फिर भी मैं क्लैरिफाई करूंगा। मैं सिर्फ इतना ही क्लैरिफाई करूंगा। ये सारे हैंडल्स, मैं आई वाज ह्यूज, मैं बहुत बड़ा फेसबुक का फैन था, मैं बहुत यूज करता था फेसबुक को। बट जब से मैं ये सोशल मीडिया पे इन चीजों को किया, स्पेशली सुशांत के केस में, मैं एकदम से इंस्टाग्राम पे आ गया। और इंस्टाग्राम यूज करने के बाद मैं फेसबुक पे बहुत ही रेयरली, अब तो ऐसा होता है कि मेरे पर्सनल जो कॉन्टेक्ट जो मुझे विश करते हैं, कुछ भी करते हैं, कई बार उनको भी जवाब नहीं। मेरी अभी रिसेंटली मैं बताता हूँ, बर्थडे के लिए मेरी वाइफ ने मुझे यहाँ तक बोल दिया कि कम से कम थैंक्स तो भेज दो सबको जो लोग कह रहे हैं। सो इतने सारे हैंडल्स अब मैनेज नहीं होते, चाहे इंस्टाग्राम हो, मैं पता नहीं कहाँ-कहाँ, मेरे को ये भी नहीं याद कि मैं कू पे हूँ कि नहीं हूँ, और अगर हूँ तो मैं कब गया था लास्ट। तो ऐसे बहुत मल्टीपल आईडीज़ होते हैं जहाँ पर मैं क्रिएटेड है, वहाँ पर बहुत सारे लोग फॉलो अनफॉलो। अगर इनको इश्यूज़ बनाना है, येस देयर आर मल्टीपल इश्यूज़, फिर तो बहुत सारे इश्यूज़ मैं ही दे सकता हूँ यार। उनका काम ही है ये इश्यू बनाना है, और वो आगे हाँ, उसको नैरेटिव चलाने हैं, फेक नैरेटिव्स। तो वो उनका काम है, वो हमेशा करते रहेंगे। करेक्ट। उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा हम लोगों को। अरे बॉस, मैं यहाँ यूएस में उल्टे साइड टाइम पे बैठ के सेशंस कर रहा हूँ। हमने वो पूरा एक एक सीरीज चलाया था जो हमारे उन उन आर्मी नेवी और मिलिट्री के वो फॉलन वॉरियर्स जिन्हें मैं कहता हूँ, या वो हमारे हीरोज, एक्चुअल हीरोज। अगर मुझे अपने कंट्री और अपने लोगों से ही ना होता तो यहाँ बैठ के मैं ये ना कर रहा होता, मैं यहाँ पर और बहुत सारी चीजें कर सकता। तो मेरे पे क्वेश्चन करना है, करी जाओ। अब मुझे, और वो भी वो कर रहे हैं जिनके खुद का कुछ इस पूरी मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। बट एनीवेज, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैंने आपको याद दिला दूं कि विल कंटिन्यू बैक टू बेसिक्स, वी विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे अंकिता लोखंडे हो, चाहे वो इम्तियाज खत्री हो। एंड जैसे मैंने कल भी कहा था और मैं आज फिर बोलूंगा, एंड इट्स अ वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज इम्तियाज खत्री को बार बार टैग करें, हर बार टैग करें, आईडी को टैग करें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे टैग करें। ही इज डेफिनेटली वॉचिंग। इंस्टाग्राम पे ही यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव। तो इम्तियाज खत्री को बिल्कुल भी भूले नहीं, हर जगह क्वेश्चन पूछे, किस तरह मारा सुशांत को, किस टाइम पे गया था सुशांत के घर, क्या किया, कहाँ है अब, किस तरह के क्वेश्चंस आप उन्हें पूछे और बार बार टैग करते रहे। वी रियली रियली वांट टू कीप इम्तियाज खत्री इन द मेमोरीज ऑफ एवरीबडी, क्योंकि इम्तियाज खत्री ही एक बहुत बड़ा क्लू है। और अगर इम्तियाज खत्री पकड़ा गया, अगर इफ ही इज कॉट बाय दीज एजेंसीज एंड ही इज इंटेरोगेटेड, चाहे जो भी डिग्री उस पर अप्लाई हो ना हो, प्लीज ही विल अटर एवरीथिंग आउट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम चाहते हैं कि बेबी पेंगुइन हो या कोई भी जो इसमें इन्वॉल्व है उसका नाम बाहर आए, वी हैव टू फोकस ऑन इम्तियाज खत्री। सो मैं कल भी रिक्वेस्ट की थी, आज भी मैं कहूंगा, हर जगह अभी तो परमवीर सिंह और अनिल देशमुख से लेके अब तो मैं हर जगह साथ में इम्तियाज खत्री की फोटो भी डालूंगा, just because we really want to make sure the message goes out loud and clear even to Imtiaz Khatri himself, क्योंकि वो जिस भी बिल में छुप के बैठा है, we have to get him out. That's pretty much यस वरुण, एक चीज मैं और उसमें ऐड करना चाहूंगी। आपने जैसे बताया खत्री के बारे में, और उसका इंस्टा वगैरह तो काफी प्राइवेट है, तो वो ज्यादा उसमें नहीं मालूम चल पाता है। लेकिन एक चीज आप इसके लिए सेशन हमेशा कर सकते हो, जैसे आपने कहा ना, ये इसको बार बार नाम इस खत्री का आएगा पब्लिक में, तो एजेंसीज के पास जाएगा। तो आप इस खत्री से रिलेटेड लोगों को भी साथ में आप ले सकते हैं। जैसे कि
Sushmita Sen once upon a time was his girlfriend, Yeah. and she never spoke about Sushant in Yeah. recent days. और उसका काफी आपने देखा ज्यादा तो फिल्में उसकी थी नहीं, और बट द काइंड ऑफ मनी शी हैज, तो वो भी आप Yeah. एक क्वेश्चनेबल है। दुबई में बहुत बड़ा उसका एक अपना अपना आप में एक बिजनेस है। Definitely, और definitely. हाँ, और वो कभी सुशांत की उसने एक भी तरह से नहीं, उसने कभी कुछ बोला नहीं। और खत्री की शी वॉज अ गर्लफ्रेंड, नोइंग अबाउट हिम एवरीथिंग, मतलब स्टिल शी वॉज विद हिम। तो उसके लिए भी आप एक कर सकते हैं। उससे रिलेटेड और भी जो लोग हैं खत्री के आसपास, तो उससे आपका और वेटेज उससे आएंगे। आएगा कि एंड सुष्मिता सेन का आप एक चीज नोट करिएगा, उसने अपनी इमेज बिल्डअप एक बहुत ही अच्छी मदर की और एक केयरिंग फीमेल एंड रोल मॉडल की बना रखी है। बट आपको अब सुशांत केस, जैसे जैसे सुशांत ने हमें सबकी रियलिटी दिखाई है, तो इसके पीछे भी एक रियलिटी है सुष्मिता के मतलब जो रियल फेस है। ऑब्वियसली उसका वो पार्ट छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा काम किया है उसने, 2 बेटियां अडॉप्ट की हैं, बट बिकॉज ऑफ दैट act, other mistakes can't be ignored. Yeah. नहीं, एंड इनका बैकग्राउंड भी काफी हद तक रिया चक्रवर्ती जैसा रहा है, और कुछ बातें पब्लिक में नहीं है, और पब्लिक में इमेज होती है ना इनकी yeah. इमेज बिल्डअप की वजह से इसकी इमेज डिफरेंट काइंड ऑफ इमेज शी इज हैविंग, बट इन रियलिटी देयर आर सो मेनी थिंग्स। इफ यू विल कीप ए सेशन, तो फिर वो अपना आप बातें थोड़ी सी आएंगी। Sure, sure, absolutely. हमने खतरी का सेशन किया अगर ये था। मैंने बोला है कि रिया चक्रवर्ती जैसा ही कुछ रहा है बैकग्राउंड, तो मतलब मैंने किसी वजह से बोला है। और इनका मतलब काफी जो पब्लिक में है वो इमेज एक्चुअल में वैसी तो नहीं है वो। Yeah, correct, correct. बस करेंगे, इतना मुझे करेंगे, कहना था। करेंगे। और खत्री से Definitely. रिलेटेड थी तो इससे मुझे और याद आया, और ऐसे बहुत से लोग इनकी नकाब उतर चुके हैं और उतरेंगे, जो अपना आपको Absolutely. बहुत बड़ा एक रोल मॉडल बनवा के रखा हुआ है इन्होंने पब्लिक के आगे। करेक्ट, करेक्ट। नहीं, So, इसके अंदर ऑब्वियसली वन ऑफ बहुत सारे इनके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक और ऐसा नाम मैं आज बिफोर आई एंड दिस सेशन में नाम तो मैं नहीं उसका लाइक प्रोनाउंस कर सकता, बट डैनी डोंजांगप्पा का बेटा जो है, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। ही इज नो, आल्सो ही इज इन अरेस्टेड ना, he's been नो, 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 arrested. अभी तक तो नहीं हुआ वो, बट ही इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट बडीज ऑफ इम्तियाज खत्री। उसके साथ ऑब्वियसली टाइगर श्रॉफ का कनेक्शन एंड द बेस्टेस्ट बडी फॉर श्योर। दो बेस्ट बडीज हैं इम्तियाज खत्री के इस इंडस्ट्री में, जो चडी बडीज कह लो उनको, एक ओ गुरु ओ सॉरी, और एक सूरज। ताहिर उसका बेटा अरेस्ट होता है, एक ताहिर खान, ताहिर सम एक्टर इज देयर नो। वो तो साहिर क्या नाम था, तारिक या शाह सम काइंड साहिल, ऑफ। समथिंग साहिल हुआ था। हाँ यस, उसका बेटा है। सो सॉरी, डेंगजुपा का भी नहीं हुआ अरेस्ट। नहीं, उसका नहीं होंगे अभी। जल्दी सभी, होपफुली वन करेक्ट। डे। सो थैंक यू सो मच वरुण जी। श्योर, और थैंक यू सो मच फॉर बाकी जॉइनिंग इन। थैंक यू। या नेक्स्ट सेशन जब मिलेंगे। विल मीट टुमारो। और दिलीप ओके, ताहिर, या दिलीप गुड डे। ताहिर। हाँ दिलीप ताहिर, सॉरी। करेक्ट, दिलीप करेक्ट। ताहिर, यस। All right. All right. On that note, thank you so much, everyone. And एक बार फिर से मैं वही कहूंगा, प्लीज इग्नोर ऑल द नॉइज। मैं भी वही करता हूँ। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि नॉइज आती नहीं है कान तक, बट फिल्टर लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आई वुड से दिस फैमिली दैट वीव क्रिएटेड, राइट? इट्स अमेजिंग। अब ऐसे लोग हैं जो वो फिल्टर का काम भी करने लग गए हैं। Their ways to reach out, and I'm really grateful, I'm really humbled. But वो लोग जो अभी भी ट्राई करना चाहते हैं, प्लीज, आई नो आप पूरा का पूरा एक डिटेल में सुनते हैं सेशन को, एंड ऑफ कोर्स दे कुड बी स्लिप्स ऑफ टंग, बट आप वो उठाएं, आप डेफिनेटली उठाएं एंड मेक योर सेशंस, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपका भी सेशंस चले, आपके भी लोग सुने, होपफुली। I really don't mind that. And anybody who really wants to take a pot shot, if you have the guts, then come here, सेशन पे आए, ज्वाइन करें, एंड बात करेंगे, क्लैरिफाई तो नहीं करेंगे, बट ऑफ कोर्स विल गिव यू योर रिस्पॉन्स।
फालतू के टाइम वेस्ट करना लोगों का और इंस्टिगेट करना या ब्रेन वॉश करना, that is not the style. And I really give a damn about anybody who's trying to malign मी प्लेटफॉर्म। अगेन इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं तो सुशांत या सुशांत की फैमिली, बिकॉज अब हम सब एक फैमिली हैं। वी विल बी देयर फॉर सुशांत, वी विल बी देयर फॉर सुशांत फादर सिस्टर्स, एंड वी विल बी हियर टिल द टू गेट जस्टिस फॉर सुशांत। सो नटंकी, यस, उसको कैसे भूल सकते हैं। अंकिता लोखंडे को तो डेफिनेटली वी विल नॉट फॉरगेट, इवन दो शी हैज वेरी लिटिल काइंड ऑफ इस पूरी अब की स्टोरी में, बट द वे शी हैज बीन एक्टिंग अप डजंट लुक लाइक शी एवर वाज इन लव विद सुशांत। बहुत ही गलत लगता है, बहुत ही ज्यादा गलत लगता है उसका बिहेवियर से। सुशांत नेवर डिजर्व, डिड नॉट डिजर्व दिस काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट इज ऑल आई कैन से। जिस तरह की हरकतें नौटंकिता कर रही है, एंड वी आर हियर फॉर सुशांत and only for Sushant. Of course, we are also following up on other issues. We will continue. We will talk about Disha. We will talk about Jia. Whenever the time is right, we will talk about other issues as well. But Sushant ke liye, we are going to be here rock solid till the very end. Anyways, we are still, yes, मुझे नहीं पता था कि 3 घंटे फिर हो जाएंगे, but thank you so much everyone. Take care. Good night. We will come back tomorrow with another back to basics. And if you have any kind of questions, comments, please, you know who to reach out. And Amit, आपने थोड़ी देर पहले मैसेज किया था, please, if you can give me a call to know those details. And he will do next time if Gina goes, if he goes not and imports to others, I will do that. All right. Thank you so much, everyone. Good night. Jai Shri Ram, Jai Hind, and stay safe, stay healthy. Take care. Bye bye. Focus, focus. Yes. Focus.